name it Enigma. And now I will continue with the vision and mission of the club. Okay. So this is all I'll say bullshit. We are not going to read it. So basically, how we started was I'll tell you about the history. A few years back, our seniors started a club named as Tech Villa, the coding club of LNCT. Many of you must have heard about it. We even started for its hiring last month or last to last month. But due to some reasons in college, we had to remove it from the college. Okay, it's still working as a community in Bhopal, but it's not affiliated to college anymore. So we had to have a ML or coding club in college. So Priyanshu, where is he? I don't think he is here. Okay, he is at the back. So that guy always wanted to start an ML club in college. We decided कि अब टेकवेला बंद हो गया है तो इसको ML कोडिंग और वेब डेव थोड़ा ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकंड ईयर वाले बच्चे एंड ऑल द किड्स वी ऑल नीड कि कोई तो एक क्लब चले कोडिंग कॉलेज में जो थोड़ा कोडिंग से रिलेटेड हो एंड ऑल दैट so we came up with this idea, we registered for the club, and so basically I'll say the main vision of the club is that सारे students के लिए first year and second year it is like I must know that बहुत सारे seniors ने आपको बोला होगा कि first second year में chill मारो कुछ नहीं होता है पढ़ाई third year से होती है but if you need to get a good placement or get your foundation strong you must start in your first year or your second year at the latest थर्ड में भी करने से हो जाता है लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में करते हो तो यू हैव गॉट हाई चांसेस क्योंकि देयर आर सेवरल कॉलेजेस आउट देयर एंड द किड्स देयर आर स्टार्टिंग इवन बिफोर द कॉलेज यू गाइस माइट नो अबाउट श्रेयन रे द करंट लेजेंडरी द फर्स्ट लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एनीबॉडी who please raise your hand properly behind Ashmita. You know about it? Okay, so, okay, how many of you know about DSA? You must know about this, please. First year does not know about DSA. Shocking. Okay. So you guys know about DSA. Competitive programming is just a very bigger version of DSA. Competitive programming is superset of DSA. Okay? So it is mostly logical and mathematical. Our club also promotes it and there are platforms like Codeforces, CodeChef, EdCoder for competitive programming. And for DSA we have got GFG, LeetCode and all that. Okay? So as I told like Shreyan Ray started coding when I think when he was in 6th or 7th class. And now he became the first legendary grandmaster from India. It means that he crossed the rating of 3000 plus on Codeforces. So if like we were also looking forward to promote this culture in our college. So yeah, CB will also be one of the part of our club. Next vision is web dev. Shreyansh here is very, Shreyansh say hi. Okay, so Shreyansh here is very good at, like I think everyone. Next time से spotlight करवा देंगे प्रियांशु. So Shreyansh here is very good at web dev. We have more team in web dev. Many people are there. Some of them are from second year too. इसके बाद ML. So Vedant here has some achievements in machine learning. Vedant, say hi to everyone. He is from third year. And I myself did a ML research intern this summer after my end of second year. So one more thing you guys have to target is getting internships and all, which is our next mission. Because it is like I don't think you guys get to know much about internships. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पता कहाँ से चलता है, apply कहाँ पे करना है and all that. Yes, there are platforms like Upwork, Internshala and all. But we are looking forward to a college-based community जो college में प्रमोट कर पाए कि हाँ अगर आपका ये फील्ड है तो आप इधर internship के लिए अप्लाई करो ये फील्ड है तो इधर अप्लाई करो and we are here to guide you for that. We have got a team and you can also join it as a member. हम लोग क्लास में बताएंगे how to join it as a member. So basically that is our mission. हम resources share करेंगे, internships के बारे में बताएंगे. We will conduct some hackathons, coding contests, so that I think the best learning happens when you can compete with your peers. Right? When you look at your friend and she is doing something or he is doing something, so you get this motivation that I also have to do something. You can form teams, you can find people in the group जिनके साथ आप team form कर सकते हो and you can participate in hackathons and all. So that was the main vision and mission of our club. Any queries, any questions right now? Anybody? No?
Okay, then we will continue. Yeah. Okay, you want to know about machine learning in what sense? Okay, so I'll tell. So basically, as far as I know, machine learning firstly starts with theoretical knowledge. Okay, although nowadays practical knowledge of machine learning is getting very famous, building projects and all. But I recently read this blog on LinkedIn from someone at Harvard or Stanford. That guy did his MS and PhD in machine learning. He had zero practical knowledge of machine learning. Okay, but when the company, they were doing a survey actually. So when the company hired all the students, उसमें से practical वाले भी थे and pure theoretical knowledge वाले भी थे, they found out that within the next 2 months, the people who actually learned the theory properly performed better than the ones who did only the practical stuff. Because in machine learning, as far as I know, आपको थोड़ा script लिखना पड़ता है, थोड़ा पता होना चाहिए and all that stuff. लेकिन जो theory वाला part है, it is extremely important. So I'll suggest अगर आप first year में हो या second year में हो, तो start with NBUNG's courses on Coursera. Okay? उनके मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन के 3 कोर्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डीप लर्निंग के डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन में भी 5 कोर्सेज हैं एंड देन यू कैन मूव टू डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग पढ़ो, उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ थोड़े बहुत, और फिर डीप लर्निंग पढ़ो, उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ। Until then you can figure it out कि आपको उसमें से कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, because machine learning is very vast field. You have to pick a specialization, like there is CNN, there is RNN, बहुत सारी चीजें होती है, LSTMs पे आप काम कर सकते हो। तो in machine learning you have to go in depth. आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते हो, otherwise you won't hold much value in the market. Another thing I would like to add is, जितना मैंने देखा है अभी, currently the big tech companies don't hire bachelors much in machine learning. जितना मुझे पता है, ओके, स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हायर करते हैं, लेकिन द बिग टेक ऑब्वियसली दे विल फोकस मोर ऑन द वंस हु नो, लाइक हु हैव डन देयर एमएस और पीएचडी, बिकॉज एज आई सेड इट्स मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल फील्ड। और अभी इतना आ ही रहा है तो पीपल डोंट डू दैट मच। सो आई विल सजेस्ट कि होल्ड, लाइक गेट होल्ड ऑन योर ग्रास्प ऑन वेब डेव अ लिटिल बिट फॉर 2-3 months एंड ऑल, फिर आप मशीन लर्निंग करने लगो, सो यू विल हैव लाइक दोनों चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता रहेगी। So if you are interested more in machine learning, try to do web development first a little bit and then you can move on to machine learning, something like that. Any other thing? Okay. After this event I will share Andrew NG ke links on the WhatsApp group, so you all can go through it. I myself did one of the course, only the supervised learning one, and it is very beginner friendly. Machine learning is also too much about maths and all. When you give interviews they ask a lot of maths. Okay, so if you want to be a good machine learning engineer and all, you need to know the maths. So yeah, that's all. Anything else? I think that's it. Anybody else? Any questions? Okay. Questions? Yeah. कहाँ से करना चाहिए? I think Shreyansh will answer this question for. Basically, वेब डेव के लिए आप कोर्सेज ना खरीदें तो सबसे बेटर है, क्योंकि YouTube पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको सब कुछ मिलेगा YouTube पे। आप बस चैट जीपीटी से बात कीजिए रोज कि ऐसा 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 है, क्या क्या मुझे सीखना है, एक एक करके टेक्नोलॉजी पिकअप कीजिए, YouTube पे सर्च मारिए और फिर सीधा बस सीखना स्टार्ट कीजिए। बेस्ट चैनल्स मैं बता सकता हूँ कि बेस्ट चैनल है हितेश चौधरी, चाय और फूड नाम से, और वो टॉप नॉच है। उसके ऊपर हो सकता है कोई हो, बट उसके नीचे बहुत सारे। और आप अपना कॉलेज और अपनी दीदी, अपनी भैया, इन सब के चक्करों में ना पड़े, उनके कोर्सेज के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि वो आपको बेसिक चीजें बताएंगे और अच्छी चीजें बताएंगे, बिगनर फ्रेंडली है, बट आपका ऐसा सीन रहना चाहिए कि आप बिल्कुल क्वालिटी चीज पढ़ें। सो उसके लिए आपको बेटर रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और उसके अलावा हम सारी चीजों के गाइडेंस के लिए हम हैं। आपको वेब डेव में जो भी चाहिए, उसके अलावा जितने रिसोर्सेज हैं वो सब के बारे में हम बताएंगे आपको। आप हमसे कनेक्ट कीजिए, आप मेंबर बनिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। अभी तो सिर्फ आज लॉन्च है, उसके बाद आप जैसे जैसे मेरे साथ, बाकी टीम मेंबर के साथ, बाकी टेक टीम के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होगी। वेब डेव क्या है, ऐप डेव का क्या स्कोप है, एंड बेसिकली एमएल और एआई को इंटीग्रेट करने के लिए, आपको शोकेस करने के लिए वेब डेव जरूरी है,
तो वो एक फंडामेंटल है। आज के टाइम पे वेब डेव आपको बेसिक लेवल पे आना चाहिए। सो वो एक फंडामेंटल चीज है ही सही। उसके अलावा उसके ऊपर जब चीजें बिल्ड होती है तो वो अपन एमएल सीख के करते हैं, एआई सीख के करते हैं। लाइक बिल्डर मोड तब एक्टिवेट होता है आपका जेन्युइनली जब आप एक बिल्डर बन रहे हो, आप एक एमएल रिसर्चर, एमएल साइंटिस्ट बन रहे हो तो ठीक है, वो आप रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हो। बट अगर आपको एक बिल्डर बनना है, अगर आपको कंपनीज में जाके काम करना है, चीजें बिल्ड करनी है, प्रोडक्ट बिल्ड करने हैं, देन ये बहुत जरूरी है कि आपको एक फंडामेंटल चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ ही आपको चीजें आनी चाहिए बिल्ड करना, और आपका बिल्डर मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए। क्योंकि बिल्डर मोड ऑन रहने से क्या होता है कि आप क्यूरियसली आप लाइक हमेशा सोचते रहते हो कि अब ये बिल्ड करना है, नहीं अब ये ब्रेक हो गया है तो डिबग करना है, कैसे तो ये करना है वो करना है। तो आपका माइंड कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहता है हमेशा के लिए, और आप एरर सॉल्व करना सीखते हो। क्योंकि आप थ्योरेटिकली कितनी चीजें सीख पाओगे, आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लोगे, ठीक है, आपने थ्योरी बहुत सारी रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट ये सब लर्न कर लिया है एक के बाद एक, और वो सब इंटरव्यू में हेल्प कर जाएगा, आप जॉब ले लोगे। बट कंपनी में जाने के बाद अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट बिल्ड करने का, देन आपको बहुत मुश्किल आने वाली है फिर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना है। तो जब तक आप हजार लाख एरर्स रोज नहीं देखोगे, और डेवलपमेंट यही है, आप कोड करने से ज्यादा एरर्स को रिजॉल्व करते हो, और उनसे डरना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वही मेन चीज है, वही सिखाते हैं, एरर से सिखाते हैं आपको सब कुछ। तो वेब डेव के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हितेश चौधरी का चैनल एक बार देखें, और सच में बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने जो चीजें सिखाई है। और मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पे बाउंसर जाती है चीजें, सेकंड टाइम पे भी बाउंसर जाती है चीजें, बट आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली चीजें करते रहेंगे तो ये पक्का है कि आपको समझ आएगा। और क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ऐसी सब चीजें हो रही है कि रॉकेट साइंस हो रहा है, मतलब ऐसा कि समझ ही नहीं आ रहा है। आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। Okay, that was actually a very good advice. He is a very good web developer, and even sometimes I take advice from him. So what we can do in the end is, जिसको जो चीजें चाहिए पड़ेंगी ना, like web dev roadmap, ML roadmap and all, community में एक मैसेज डाल देना। हम लोगों को जो बेस्ट इजीएस्ट वे लगा था उसको हम स्टेप वाइज डाल देंगे कि यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है। आई थिंक यू कैन फॉलो इट ब्लाइंडली। किसी को कुछ और डाउट्स हो तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। One more thing, whoever will be the most interactive today will get the chance to win that keyboard, take it home. And along with that, we have got some stickers as well. So last में leave करते time, take those as well with you. Okay? We will continue now. Okay. So now you have heard the story about naming our club, right? Initially, we decided on taking the tagline as Decode the Unknown, but we are open to any suggestions you guys have. As you have already heard our story about why did we choose Enigma as a name, it is open for you all to just give us our tagline. So anybody? Any suggestions? Hindi, English? Please guys answer. Okay, how many of you think the Decode the Unknown one is perfect for this one? Okay, quite a few hands. Okay, so are you ready for something interesting? So, okay, here comes our game. Alright everyone, buckle up, it's quiz time. Now don't worry, this isn't one of those boring tests where you have to remember formulas or definitions. No, today we have to have some fun with our brains. This round is called AI or not. We'll show you some pictures, some made by super smart artificial intelligence and some captured by us humans. We still have a few brain cells left. Your job, just tell us AI or not. Easy, right? Well, let's just see how confidently you say. So come on, let's make some noise. You have to choose the real image out of it. So who wants to give answer for the first one? Raise your hand, guys.
right one, raise your The hand. bottom man. Is it? Mark his answer. Answer the first one. The bottom man. The bottom one. Anybody else? One by one. Yes. Go ahead. Who wants to answer? नीचे वाली. Raise your hands, guys. So for second one, who wants to answer? Okay. Second one, everyone. Bottom one. Bottom? Please give the explanation as well. Yeah. Because there in second there was no cloud and there was realistic image. Perfect. Yeah. One more thing, introduce with your name because we have to prepare keyboard as well. My name is Vaibhav Namdev and I am from LNCT UAIML. And what's your name? Does anyone have to change their answers for the first and second as well? No? Okay, so who wants to answer for the third one? नीचे वाली है. Myself Smith Pathak. क्योंकि वो अलग समझ में आ रही है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में. मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी एआई के द्वारा बनी हुई है और कौन सी नहीं. जैसे फोर्थ वाली है उसमें भी अलग समझ में आ रहा है. Does anyone have to change their answer? Second? Myself, Risika Motmani, and for second one, I think the ऊपर वाली है real. Anybody have to change their answers for the third or first one? Myself, Khushbu Rathod. Third की first वाली हो सकती है because the children are The reason? reasons कुछ specific नहीं हो सकता You are also confused. Third का first ही हो सकता है क्योंकि writing वगैरह और Okay, who wants for the fourth one? First or second? Who is that? Bottom one is fourth AI. Because there was no background at the you have to tell real one. Which is real? upper. Upper one is real. Does anybody have to change their answers? The bottom one is there. He said the same thing. Okay, so let's show the results. Very well tried. Thank you, everybody. Are you correct or not? Now we will discuss about Enigma presence in LNCT. Like Enigma is active across all branches of LNCT, bringing tech talks, hackathons, and challenges that unite students from every stream. Now we will call Priyanshu Bhaiya. Priyanshu Bhaiya. We'll call for HOD ma'am to call. HOD ma'am. We'll call to call. Hello. Okay, so Priyanshu is not here. Probably वो HOD मैम के पास गया है उनको बुलाने के लिए. Who all are from LNCT main? I think most of you. Who all are not from LNCT main? Okay.
Sorry, we all are a bit lost. Who is from Excellence? Okay. Nobody else? Someone was from the team as well, na? Adi. Okay, he's sitting here. A science building? Okay. And university? Okay. ठीक है. And BCA, MCA, someone? Nobody? Okay, so you guys please make sure कि आपके पास जो भी आया हो ना अपने friends में circulate कर देना so everybody can join us. Okay. And now Priyanshu will continue. हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल? इवेंट सही जा रहा है? मतलब ठीक लग रहा है सबको या सिर्फ यहाँ बोलने के लिए बोल रहे हो या थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग करा जा सकता है इवेंट को? वी विल ट्राई, क्योंकि देखो पहला इवेंट है और थोड़ा बहुत कल का जो बस का इशू है वी नो की थोड़ी उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई है एंड थोड़ा बहुत हो रहा है कंफ्यूजिंग कि आगे चल क्या रहा है, लाइक थोड़ा फ्लो को लेके और सारी चीजें भी अंडरस्टैंड है, थोड़ा बहुत ऑडियंस में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा यार एंकर्स के संग में थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करने का ट्राई करो, लाइक दे आर आल्सो डूइंग फर्स्ट टाइम एंड वो भी आपकी तरह सेकंड ईयर से ही है एंड दे आर ट्राइंग कि थोड़ा बहुत नॉर्मल हो सके. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर एनिग्मा इज व्हाट वी डू. चलो ये चीज तो ठीक है, आप लोग पढ़ ही ले रहोगे, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए नेक्स्ट? एनीवन? इसमें तो वॉलंटियर कर दो यार, ठीक है, इन लोगों के संग मत करो, मेरे संग तो कर दो यार, कोई इशू नहीं है. इन लोगों के संग चलो मैं समझता हूँ नहीं कर रहा है कोई, मेरे संग थोड़ा बहुत तो बताओ कि आखिर क्या कर सकते हैं. आई विल ट्राई वही इंप्लीमेंट करने का नेक्स्ट. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मेरे को कोई आंसर नहीं देगा ऑडियंस में से इस चीज को. ये लोग तो बढ़ जा रहे थे आगे, बट कोई को तो यहाँ पे वॉलंटियर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है इवेंट का. Guys, he started the club. He is very passionate about it. तो सच में आगे नहीं बढ़ेगा, बर्बाद हो जाएगा. आप कुछ करना चाहते हो? कि अगर कोई मीम बना हमको आगे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सो माय क्वेश्चन इज दैट फॉर दैट, हाँ प्लीज. कॉलेज में कोडिंग कल्चर पढ़ा सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट ईयर है तो अभी हम कोडिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ ही नहीं रहे, सिविल मैकेनिकल ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कोडिंग कल्चर ज़्यादा पढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर से ही. आपकी ब्रांच कौन सी है? AIM. ओके, एलएससीटी मेन. यस. ओके, अभी तो सिविल वगैरह ये सब चल रहा होगा ना, लाइक इन सेकंड सेम ना, नहीं फर्स्ट सेम. ओके ओके, तो सिविल वगैरह ये सब चल रहा है, आएगा गाइस, नेक्स्ट वो भी आएगा, सेकंड ईयर से वो भी पढ़ोगे आप लोग. हम लोगों को भी लगता था कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो ये करेंगे ही नहीं आगे जाके, कौन को सिविल करना है कौन को मैकेनिकल करना है. बट ये चीज भी ना आई थिंक जरूरी होती है कि जैसे लेट्स से कि आप AIML में हो, आपकी ब्रांच AIML है, बट कल के दिन आप किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हो जो ML रिलेटेड है, ओ सॉरी सिविल रिलेटेड है, लाइक दे वांट कि हाउ कैन वी मेक बेटर कंक्रीट यूजिंग ML मॉडल्स, मतलब कितना बेटर कर सकते हैं उसको रिफरवाइज करके चेंज करके और बेटर करके वो चीजें. मे बी लाइक बहुत से लोगों को पता है कि पहले की जो जिप्सम बनाने की टेक्निक थी वो बहुत अलग थी, मतलब लाइक पहले के फोर्ट देखो, ताजमहल देखो, वो अलग डिफरेंट है, मतलब अभी उतना बेटर कोई नहीं बना. और अगर जैसे मान लो कि अपन ऐसा ML मॉडल क्रिएट कर लें, क्योंकि ह्यूमंस के लिए आई थिंक वो थोड़ा सैचुरेटेड हो गया है कि वो खुद कैसे भी बिल्ड कर सकते हैं, तो वो चीज के लिए जरूरी है आई थिंक वो चीज भी पढ़ना. और लाइक इस टाइम आप लोग ये पढ़ोगे सिविल वगैरह, फिर अगले में शायद PG वगैरह आएगा, वो भी आई थिंक जरूरी होता है. बट सेकंड सेम से आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा कंटिन्यू की ML रिलेटेड पढ़ रहे हो. बट मैं ये कहूंगा कि ये चीज तो पढ़ेंगे हो, सिलेबस में तो है ही है, बट आई थिंक आपको DSA वगैरह ये सब चीज ना अपने एंड से ट्राई करते रहनी चाहिए. आप लोगों में से लीड को कौन कर रहा है? ओके, आपका हो गया क्वेश्चन हो गया. ओके, थैंक यू. आपका नाम क्या है? अश्मित. ओके, क्या क्वेश्चन? लीड कोड. अच्छा, लीड कोड. ओके, तो लीड कोड वगैरह कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम हो गया? अभी मुझे 1 महीना हुआ है और मेरे 54 क्वेश्चन हो. ग्रेट. POTD वगैरह सॉरी. प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो या सिर्फ क्वेश्चंस?
मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा ओके ओके ग्रेट 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 लाइक इन फर्स्ट ईयर ना हूँ सॉरी आप फर्स्ट ईयर हो ना नो नो सेकंड ओके ओके सेकंड सेकंड ग्रेट अच्छी बात है यार सबको लीड कोड वगैरह तो करना ही चाहिए कोड फोर्सेस लीड कोड लाइक ये प्लेटफॉर्म्स तो मस्ट ही हैं आई थिंक फॉर एमएल रिलेटेड एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द Kaggle TensorFlow गूगल कोलैब लाइक अगर आप एमएल रिलेटेड फील्ड्स में हो या एआई में हो ये चीज तो आपके लिए मस्ट है नो करना लाइक क्योंकि ये चीज तो नेसेसरी है फॉर ऑल ऑफ दैट यस भैया मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने पूछा कि हमें और क्लब में क्या करना चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि जो भी 7th सेम में जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं जिनका भी प्लेसमेंट अच्छी पैकेज पे लग रहा है जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे मैंने टीएनपी की पोस्ट पे देखा कि निकिता दास करके एक मैम है उनका 17.6 लाख का पैकेज लगा है तो अपने एलएनसीटी से एवरेज करीब 6 लाख 7 लाख इतना एवरेज जाता है जहाँ तक मुझे पता है तो बच्चे कहाँ रह जाते हैं कि जो 17 लाख का पैकेज लग रहा है मतलब अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है तो बच्चे रह कहाँ जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सीनियर्स से हमारा इंटरेक्शन बढ़ाया जाए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भी बेटर कर सकें ओके ओके सो इसके लिए अभी हम लोग वेबसाइट शो करेंगे आपको जो हम लोगों ने बिल्ड किया लाइक उसमें बहुत सारे एलिमनी इंटरेक्शन है एंड एक और चीज आप जैसे बोल रहे हो कि लाइक 6-7 एवरेज है आई नो लाइक बहुतों का 17 जाता है बहुतों का 25 जाता है किसी का 1 CR भी गया है वो पहले के उसमें बस ऐसा रहता है ना कि कई बार क्या होता है लोग कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं ले पाते क्योंकि जो भी होगा कुछ मतलब क्योंकि कॉलेज की कितने टाइम तक प्लेसमेंट देगा वाली चीज है बट अपन आ जाते हैं नेक्स्ट चीज लाइक बहुत से लोग ना बाहर जाके अच्छा कर लेते हैं लाइक आई नो मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं एमएस में गूगल में वो एलएनसीटी से पास आउट है बट स्टार्टिंग उन्होंने बहुत कम से की थी आफ्टर दैट दे आर इन गुड लेवल वैसा वाला ओके आपका हो गया क्वेश्चन आंसर्स ओके एनीवन यस भैया मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे मतलब फर्स्ट ईयर वाले हैं तो उनको पहले से ही मतलब कि कोडिंग से जो उनको रिलेटेड है तो उनको पहले से इंट्रोडक्शन करने का मौका मिले तो क्लब्स में ज्वाइन करने का मौका मिले यार फर्स्ट ईयर में ऑफिशियली क्लास में ज्वाइन करना इज नॉट पॉसिबल लाइक हम लोग भी नहीं थे लाइक जितने भी लोग हैं हम ऐसे लाइक हम लोग पहले टेक्निकल में भी थे तो हम लोग भी ऑफिशियली सेकंड ईयर से आ पाते हैं बट ऑनलाइन आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो लाइक अगर आपको हमारे ऐसे कोर टीम है हमारे में बहुत सारे टीम्स में जिन लोगों ने साथ दिया है फर्स्ट ईयर से है बहुत सारे लाइक टीम में से भी बहुत लोग हैं जो फर्स्ट ईयर से हेल्प कर रहे हैं एंड सेकंड ईयर से तो नहीं है एक फर्स्ट ईयर से वो वैसे कर सकते हो बट ऑफिशियली करवा पाना वो हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉलेज अलाउड ही नहीं करता है किसी भी फर्स्ट ईयर को कोर टीम में ज्वाइन करवाने से तो वो चीज हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है बट हम ट्राई करते हैं लाइक हम लोगों ने जो वेबसाइट बिल्ड किया है वो पूरा वो वाली चीज हम लोगों ने बल्कि लाइक अभी श्रेयांश आपको समझाएगा ही वो चीज बट हम लोगों ने लॉगिन भी स्टूडेंट्स के लिए इन्वॉल्व किया उसमें जिसमें वो लोग लाइक रेडिट फॉर एमएल कम्युनिटी डिस्कशंस कर सकते हैं कि वो लोग कैसे और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कैसे बेटर कर सकते हैं एंड बहुत सारे हमारे पास एमएस और गूगल के मेंटोर्स हैं तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वैसे मैं अभी आपको बताता हूँ रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी एक भैया से बात हुई जो एमएस में है उनसे मैंने प्रोजेक्ट को रिलेटेड पूछा था कि क्या बेटर प्रोजेक्ट हो सकता है वो एमएल में है अभी मतलब एमएल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएल इंजीनियर रोल पर है एंड उनने मेरे को जो पहला रिप्लाई दिया ना उनने ये दिया कि ट्राई टू बिल्ड रैग मॉडल इन वेक्टरडीबी एनीवन नो वेक्टरडीबी ओके अभी पढ़ोगे आप लोग लाइक अगर आप एमएल में जा रहे हो तो वो चीज तो मस्ट है आपके लिए लाइक एनएलपी आएगा अभी आपका सब्जेक्ट थर्ड सेम में वो थर्ड ईयर में वो चीज तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि रैग वेक्टरडीबी रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो क्योंकि देखो 2 टाइप के रोल्स होते हैं किसी भी कंपनी में एआई आर्किटेक्ट एंड एआई इंजीनियर एआई आर्किटेक्ट होता है जो स्क्रैच से एमएल मॉडल बनाता है जैसे अभी आप पढ़ोगे एएमएल में सुपरविजन एंड अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग उसमें स्क्रैच से बिल्ड करना मॉडल्स को एनहांस करना वो वाली चीज तो हम लोगों ने सबका सब वेबसाइट में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करो हमारी सारे रिसोर्सेज हम लोग वहां पे शेयर करेंगे एंड जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो यू आर ओपन टू ज्वाइन एनी कम्युनिटी एंड बल्कि यार कम्युनिटी ज्वाइन क्या करनी खुद की कम्युनिटी बना लेना और बेटर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इतने फ्लॉज हैं ये है वो है तो देन आप अपनी कम्युनिटी भी चालू कर सकते हैं ओके एनी अदर और जैसे अब वेब डेवलपमेंट करना है तो उसमें प्रोजेक्ट्स किस टाइप से रिलेटेड बनाने चाहिए ओके तो लाइक वेब डेव तो बहुत सैचुरेटेड हो गया है आपको 1000 रिसोर्सेज मिल जाएंगे लाइक वेब डेव तो ऐसा हो गया है कि अगर आप किसी HTML CSS वाले से बोलोगे तो वो भी अपने आप को वेब डेव इंजीनियर बोल देगा कि आई नो वेब डेव बट मैं कहूंगा ना प्रोजेक्ट आप
ML या AI से रिलेटेड में जितना आप घुस सकते हो उस चीज में घुसने का ट्राई करो। जैसे कि Zen AI पे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपके पास, जैसे आप बोलो कि हमारे पास पेड LLM मॉडल्स नहीं है Zen AI यूज करने के लिए, ट्राई टू इंस्टॉल इन ओन सिस्टम Zen AI मॉडल्स को अपने ओलामा करके प्लेटफॉर्म आता है। आप उस वो तो मस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो अगर आपके पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन नहीं है फॉर डेवलपर्स, लाइक जो उनका एपीआई की वगैरह जो जनरेट होती है वो नहीं है, तो आप ओलामा डाउनलोड करो। ओलामा ऑफलाइन मॉडल, ऑफलाइन पेड मॉडल्स को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके रन करने का वो देता है। तो मैं तो कहूँगा कि वेब डेव कर रहे हो ना, तो वहाँ उन चीजों को ट्राई करने का ट्राई करो। लाइक वेब डेव रिलेटेड में आप हो सकता है Gen AI से रिलेटेड कोई सिस्टम बना दो जो किसी की हेल्प कर रहा है, लाइक असिस्टेंट, कोई पर्सनल असिस्टेंट फॉर द लॉयर बना दो जो Gen AI से Gen AI रिलेटेड है बैकएंड में, एंड वो स्टूडेंट के लिए बना दो। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को डे टू डे टास्क करने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने उसको बोला कि मेरी ये असाइनमेंट है एंड वो मेरे को नोटिफाई करते रहेगा। इट इज ए ग्रेट प्रोडक्ट। बल्कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो ऐसे ही स्टार्टअप में कन्वर्ट होते हैं जो कॉलेज रिलेटेड थिंग्स है। तो मैं मतलब कोई भी अगर जब से आप प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हो ना, उसको ये सोचो कि आप उसको स्टार्टअप के तरीके से कैसे जा सकते हो। इनिशियली उतना बर्डन मत दो खुद के ऊपर, इनिशियली जस्ट ट्राई टू बिल्ड एमवीपी। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, वहां पे पोस्ट करो, ट्विटर पे एक्टिव रहो, वहां पे पोस्ट करो, इन कम्युनिटीज में पोस्ट करने का ट्राई करते रहो कंटिन्यू। एंड यहाँ से रीच आती है, मतलब बहुत सारे जो एचआर होते हैं यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ऑनलाइन रीच इज मस्ट। अगर आप कोई भी बिल्ड कर रहे हो, छोटा सा प्रोजेक्ट है, स्नेक गेम बना रहे हो पाइथन में, तो वो भी डालो उसमें कि हे आई बिल्ड दिस, बल्कि उसमें कुछ और उसी के ऊपर बेटर कर दो। स्नेक गेम में उसमें चैट डिस्कशन लगा दो, मतलब कुछ भी करके ना, ऐसी बहुत सी चीजें क्या अपग्रेड ही होती हैं धीरे धीरे। जैसे कमेंट क्या है, क्रोम ब्राउज़र ही क्या उसको ऊपर यही रैपर डाल दिया है, सीधी सी बात है। तो वही चीज करने का ट्राई करो ना, तो जो पहले से है बहुत सी चीजें ओपन सोर्स है उसको ट्राई करो। ओपन सोर्स को और बेटर कैसे कर सकते हैं, अभी जीसॉप आने वाला है, जीसॉप तो वही ट्राई करना चाहिए आई थिंक सबको। अगर ऐसे आपका अवेलेबल इंटरेस्ट है, टेंसर पे ओपन कम्युनिटी है, ओपन सोर्स है, वहां पे ट्राई करो, तो वो चीज बेटर है ट्राई करके। ओके क्या ये सब जैसे पढ़ाई वाली चीज़ें तो बहुत होगी, बट कोई फन एलिमेंट, मतलब थोड़ा फन या क्रिएटिव स्टफ भी होना चाहिए। जैसे अभी क्विज कराया था तो सबसे ज़्यादा लोगों ने तभी इंटरेक्ट किया था, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लब में तो ओके, तो आपका मतलब है कि फन गेम्स वगैरह भी बीच में रख सकते हैं या हाँ, लाइक ऑनलाइन एक्टिव रहोगे ना, तो हम लोगों ने सोचा है कि सिंक कॉज विद द कम्युनिटी मेंबर्स, जैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग 15-20 दिन में, लाइक इन सैटरडे या वेडनेसडे जब भी कम्युनिटी मेंबर्स मोस्टली एक्टिव रहते हैं, तो वो चीज हम लोगों का प्लान है। क्योंकि वो हम लोग भी समझते हैं कि थोड़ा बोर हो जाता है अगर सिर्फ पढ़ाई की बातें करते रहेंगे, तो कब तक वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उस चीज के लिए हम लोग प्लान करके रखा हुआ है। वो डिस्कशन वाला सेक्शन इसीलिए हमने बनाया, एंड वो तो भी फर्स्ट वर्जन है। श्रेयांश को टाइम तो वो तो मतलब लाइक पता नहीं क्या क्या उसमें और चीजें करने का सोचा है, हमने ही रोका हुआ है उसको कि श्रेयांश वेट की अभी और चीजें ओरिएंटेशन तक नहीं हो पाएंगी, उसको बाद में ट्राई करेंगे। और मुझे पूछना था कि यहाँ पे कोई मेजर प्रोजेक्ट्स भी बनवाएंगे क्या? इन द कॉलेज, लाइक सिलेबस में या क्लब में? ओके, क्लब में। हाँ, तो वो डिस्कशन सेक्शन में ना हम लोगों ने वो वाली एक और चीज ऐड करी है, लाइक प्रोजेक्ट्स वाली, कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स उसमें ऐड करो, लोगों से रिव्यू लो कैसे और बेटर कर सकते हैं, एंड देन उसको अपग्रेड करो, एंड देन फिर पोस्ट करो। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं उसमें, लाइक जो हमारी कम्युनिटी है मोस्टली एक्टिव और मोस्टली प्रोजेक्ट्स को डाल रहा होगा, तो उनको हम लोग मतलब ऐसा ना क्या कह सकते हैं उनको वेबसाइट में एक प्रॉपर वो रिकॉग्निशन टाइप का, किसने बिल्ड करा है। अगर हम 2 लोगों 3 लोगों टीम है, तो उनको प्रॉपर एक वो वेबसाइट के अंदर कि मतलब उसको प्रॉपर एक रिकॉग्निशन, जैसे कि अगर आप किसी को शेयर भी करना चाहो एज अ पोर्टफोलियो कि मैंने यहाँ पे ये ऐसा वो करा है, तो वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। What was your name? Anushka. Okay, so for your question, I would like to add this as well कि हम लोग के projects आपको build नहीं करा सकते, right? Because there are much better developers and creators out there जो आपका project करवा सकते हैं. But yeah, we can provide you a support community. हम आपको ऐसे college में you can contact with the seniors और साथ वाले बच्चे जो आप जैसे कि as Priyanshu said कि आप कोई project डालोगे तो they can review your project or you can find a team in the community जिनके साथ आप वो project बना सको. We can share ideas and all for the project. Anyone else has any doubts or we will take at the last, will it work or
या Hi, this is Sakshi, and my question is for you is सबने प्लीज टेक माइक ही कर रही है। Hi, this is Bhagishi, and my question for you is that if I want to go in the field of AI/ML and want to deploy the model of AI/ML, and it is necessary to me to learn the web development. नो नो नो, लाइक बहुत सारी चीजें हैं, लाइक स्ट्रीमलेट आता है पाइथन पे। स्ट्रीमलेट में पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें आपको ना सिर्फ वो मतलब पाइथन तो मेरे को लगता है कि आप लोग ये बोलते होंगे ना कि इंग्लिश है, यही लग रहा होगा अभी तक तो सबको। बहुत सिंपल हाँ स्टेटमेंट। हाँ वही तो वो तो सबको ये लगता है कि इंग्लिश है, तो उसमें एक स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी आती है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब अब तो यार चैट जीपीटी वगैरह इतने सारे आ गए हैं, मतलब गिटहब कोपायलट है, स्टूडेंट बेनिफिट्स लो कि आपको कॉलेज आईडी मिली है वहां पर डालो वो सब चीजें बेनिफिट्स लो, एंड बस आपको वेब डेव खुद बिल्ड करो, पूरा मॉडल पूरा रैक खुद से लगाओ, पूरा वेब डीबी खुद से बिल्ड करो, सब कुछ खुद से करो, एंड जब आपको डिप्लॉय करनी है चीज एमएल मॉडल को दे गिटहब को दे, गिटहब कोपायलट को दे दो कि मैंने ये बिल्ड करा है, जिसको फ्रंट एंड बाइंड कर दो। और अगर वो भी नहीं करना है, स्ट्रीमलेट एक प्लेटफॉर्म है पाइथन का, मतलब सॉरी लाइब्रेरी है, उसमें बेसिकली आपको अपना कुछ नहीं मॉडल डालना है, बैकएंड से स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं, एंड उसमें कुछ नहीं, बस हेडर में क्या चीज चाहिए, साइड बार में क्या चीज चाहिए, लाइक फुल्ली इंग्लिश है, वहां पे डालोगे एंड प्रॉपर आपको वेबसाइट बना के दे देगा। और अगर आपको प्रॉपर ही बनाना है तो वो भी इतना टफ नहीं होता है, लाइक मेरे हिसाब से ना जो बंदा एमएल सीख रहा है उसका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो चुका है कि वो वेब डेव को 15 दिन में 20 दिन में खत्म कर ले, अपने मॉडल को डिप्लॉय करने लायक। मतलब सिर्फ अगर उसको मॉडल डिप्लॉय करना, लाइक उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं समझता हूँ कि आप अगर फ्रंट एंड पे जा रहे हो तो बहुत चीजें हैं, ये बेटर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये वो मीम्स भी देखे होंगे आपने, हाउ टू सेंटर ए डिव, लाइक मोस्ट कॉमन मीम इन द वेब डेव, तो वो वाली चीज है। तो मतलब अगर आप पूरा अंडरस्टैंडिंग लोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं सोचता हूँ कि अगर आप एमएल रिलेटेड बिल्ड करो तो उसमें इतना कुछ नीड नहीं है आपको वो चीजें कराने का। जैसे कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो उसमें जो स्टारलेट है और जो टेंसरफ्लो है, बेसिकली हम उसको एमएल के लिए यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली स्ट्रीमलेट इज ओनली फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन फ्रंट एंड। स्ट्रीमलेट ऐसा है, ये मान लो कि वो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए है, टेंसरफ्लो तो प्रॉपर एक एमएल मॉडल्स को इंटीग्रेट करने के लिए। टेंसरफ्लो सिर्फ ऊपर की एक लेयर है, अगर आप ऐसे अभी थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में आओगे ना तो आपको पता चलेगा डेंस लेयर्स के बारे में भी, लाइक कितने टाइप्स की लेयर्स होती हैं, एंड CNN मॉडल्स, RNN, ENN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये लेकर तो वो उनकी लेयर्स है, वो तो काम को इजी करा रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप टेंसरफ्लो से मॉडल बिल्ड करो, वो तो ना आपको सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड करा रही है अंदर की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप मतलब टेंसरफ्लो इज डिफरेंट थिंग एंड स्ट्रीमलेट इज ओनली फॉर डिप्लॉयमेंट, वो सिर्फ फ्रंट एंड में दिखाने के लिए ये चीज है, एंड टेंसरफ्लो तो पूरा एमएल रिलेटेड चीजों को लिखी है वो ऐसा। थैंक यू भैया। ओ एनी अदर? या हो गए तो नहीं ठीक ओके, तो सभी सजेशन दे दिए हैं। अब जो 4 चीजें हैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना जो मेरे से कहेंगे कि वो वाली चीज बेटर एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो पहली चीज है वर्कशॉप, जो हम लोगों ने सोचा हुआ है वर्कशॉप को लेके, हम लोग 15 या 20 दिन में किसी अच्छे मेंटोर से, लाइक एमएल गूगल या फार्म ऐसे या जो भी बिग एमएल रिलेटेड कम्युनिटीज हैं या जो भी है उनके साथ कोलैबोरेट करके वर्कशॉप कराने का ऑनलाइन। अभी आपको कम्युनिटीज का लिंक एंड में दे दिया जाएगा, लाइक क्यूआर कोड आप स्कैन करके वो ज्वाइन कर सकते हो, तो सारे अपडेट्स एनिमा से रिलेटेड वहां पर आने वाले हैं। एंड सेकंड चीज है हैकेथॉन्स, सो ये तो मस्ट ही है, लाइक इसके बिना तो अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं लगता कि रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग इसके बिना आ सकती है। सो कॉम्प्लीट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट, ये लाइक हैकेथॉन में किसने पार्टिसिपेट करा है अभी तक यहाँ में? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? Am I audible to everyone? Am I audible now? Okay, so my name is Ayushi Gupta, and previous week I went for an hackathon in Lucknow, and it was sponsored by Black Box AI. And like it was my first hackathon, and जो मेरी टीम मेंबर्स थे उन्होंने basically बहुत पहले एक hackathon फर्स्ट
सो मेरे जो टीम मेंबर्स थे उन लोगों ने पहले हैकेथॉन में गए थे IIT दिल्ली में BNK हैकेथॉन का जो थर्ड का ब्लॉकचेन बेस था। सो वॉइस नहीं आ रही क्या मुझे क्लियर ऑडिबल हो ना? हाँ, सो उन लोगों ने पहले कर लिया था एंड दे वर लाइक सेकंड रनर अप ओवर देयर। सो मुझे बहुत मोटिवेशन से मिला कि लाइक मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर मैं लखनऊ गई एंड वहाँ पर लाइक 300 कुछ प्लस टीम्स आई हुई थी एंड वहाँ पे मोस्टली जो थे Tier 2 और Tier 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे, लाइक IIT मद्रास, IIT पटना NIT वगैरह। सो उनके साथ कम्पीट करके बहुत अच्छा लगा एंड बेसिकली वो 30 आवर्स की हैकेथॉन थी वहाँ पे एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं होता कि हैकेथॉन में बस कि आपको काम ही काम करना है, मतलब प्रोजेक्ट ही बिल्ड करना है। इट्स लाइक फन भी होता है आपको, यू हैव टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट विद द पीपल अराउंड यू एंड योर टीममेट्स। सो बेसिकली इट्स वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हमने चीज़ें बहुत सीखी साथ में बैठ के, हमें कुछ नहीं आ रहा था। सो हमने ChatGPT करा, हमने DeepSeek करा, वी यूज AI टूल्स एंड ऑल फॉर दैट। सो लाइक इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। सो सबको ट्राई करना चाहिए हैकेथॉन्स, लाइक वेदर यू नो थिंग्स और नॉट। बेसिकली मुझे भी इतना कुछ नहीं आता, मेरे टीममेट्स को ही आता था ज़्यादातर एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। लाइक AI टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप AI टूल्स लाइक बहुत हेल्पफुल होते हैं काइंड ऑफ, कि अगर आपको बैकएंड नहीं आ रहा है सो आप यू कैन यूज AI टूल्स फॉर दैट। सो काइंड ऑफ वी डिड दैट एंड हमने IIT मद्रास और IIT पटना इन सबके स्टूडेंट्स को जब देखा, 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स को, सो उनको देख कर हम इतना डिमोटिवेटेड हो गए वहाँ की कि यार भाई अब कुछ आ ही नहीं रहा हमको। तो मतलब वो इतनी फास्ट कोडिंग कर रहे हैं, उनका सब कंप्लीट है। अभी हम हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट करके बैक एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम उसमें 3rd वेब इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसमें लाइक ब्लॉकचेन डाल रहे हैं, APIs की डाल रहे हैं। उनका कंप्लीट हो गया, वो बंदे बैठे हुए वहाँ पे मतलब चिल कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, मॉन्स्टर पी रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ कि काइंड ऑफ अच्छा था। मेंटर्स आए वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल्स के मेंटर्स आए, उन्होंने हमें बहुत लाइक बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए काइंड ऑफ। सो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। आई वुड से कि सबको ट्राई करना चाहिए हैकेथॉन। एंड देन वी ऑल्सो, हम लोग टॉप 10 में भी थे एंड इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो वी मेड एक और हैकेथॉन 56 into that year. कौन सी वाली अभी की पहले? नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली न्यूटन स्कूल में है पैराडॉक्स। ओके, सो लाइक यू नो व्हाट एक्चुअली मुझे नहीं पता अभी इसका लीड कौन है। एक्चुअली आई थिंक वी नो फ्रॉम दैट कम्युनिटी आल्सो, जो दिल्ली मैराथन कराने वाले हैं। मे बी सेवा दास हो गए, शायद गीक्स रूम या नर्ड्स रूम में से कोई करा रहा होगा, तो ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद अस, हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस आई या श्योर थैंक यू। ओके, सो फाइनल 2 चीजें और बची हैं लास्ट की, फिर खत्म करके मैं साइड हो जाता हूँ। फिर नॉर्मली जो चल रहा है वो चले जाते हैं। गेस्ट टॉक्स। सो वर्कशॉप तो लाइक इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग क्या अंडरस्टैंड करोगे उन चीजों से, बट गेस्ट टॉक इज लाइक कि व्हाट दे आर व्हाट दी मेंटर्स एक्सपीरियंस इन देयर कंपनीज। अगर कोई फार्म रिलेटेड या कोई बेटर कम्युनिटी से मेंटर मतलब अगर वो वर्क कर रहा है तो वहां पे चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। लाइक इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस इज मस्ट फॉर एवरीवन आई थिंक। अगर ऐसे, क्योंकि नॉर्मल बेसिक प्रोजेक्ट्स और वहां पे डिप्लॉय करने में बहुत फर्क होता है। CI/CD पाइपलाइन, DevOps रिलेटेड वर्क, मतलब इट इज लाइक कि आप जो यहाँ पे कर, वो होता है ना कि बचपन में जो अपन DIY के प्रोजेक्ट्स बनाते थे एंड जो और फिर बड़े होके जब उसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, तो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो गेस्ट टॉक्स इज लाइक नेसेसरी थिंग फॉर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड कैसी चीजें वर्क कर रही है रियल वर्ल्ड में एंड कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, जैसे हमने बताया डिस्कशन सेक्शन में, अगर कोई बेटर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है, सब कोऑर्डिनेशन बढ़िया चल रहा है, लाइक यू कैन आल्सो टैग अस इन लिंक्डइन की कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। एंड आज के इवेंट को लेके आल्सो इफ यू आर टेकिंग फोटोज, हम तो डालेंगे ही अपने एंड से, बट आप लोग भी अगर चाहे तो हम लोग को टैग करके डाल सकते हैं। अभी लास्ट में हमारी लिंक्डइन कम्युनिटी शेयर कर देंगे। प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप को लेके ये है कि हम लोगों ने एक सेक्शन डाला हुआ है वैसे तो उसमें अपॉर्चुनिटीज का, बट उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं अभी सिर्फ मोस्टली हमने फार्म रिलेटेड जो ओपन आती हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे क्यूरेट करने का ट्राई करा है। जस्ट लाइक कि MS की अगर कोई इंटर्नशिप आ रही है या कोई रोल्स आ रहे हैं ओपनिंग्स में और आप अगर उनको लेना चाहते हो तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम निकल जाता है, चीजें आती हैं, आप लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो 2 वीक्स अगो एंड देन वो निकल चुकी होती है तब तक। तो वो चीज का हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप हम लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो चीज अपडेट कर दें। ऐसा
Okay, so any other questions regarding what we do? Yeah, कुछ? Okay, हो गया. You can continue now. Okay, so we'll play a game again, like if you want. Like for right, that's first some myth about artificial intelligence. I'll say a common AI belief. You shout myth or fact. Like photos are showing. Just raise your hands if you know the answer. All right, who's ready? ये फैक्ट है. Introduce. Introduce yourself. चंद्रकांत Explain, होकर. explain the answer to. यहाँ पे रियलिटी में ये कुछ और कर रहा है. यहाँ पे मूवीज में कुछ और दिखाया जा रहा है और हमारे इंसान में कुछ और हो जाता है मूवी से इंस्पायर. Anybody else? Yes, for next question. Who's ready? It's a myth. Why? We all know about this, that it's actually a fact that AI is a machine and machines can't make an act like Anybody else? Sense. You don't know the answer or you want to answer? Actually, it's correct, and we've shown the result. Next. Who wants to answer? Raise your hand, guys. Anybody? It's a fact. Why? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि एआई वो सब काम कर रहा है जो ह्यूमन उतनी जल्दी नहीं कर पाते, वो फास्टली कर रहा है, तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है कुछ चीजों में. जस्ट लाइक हर जगह नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बहुत जगह कर भी रहा है. Swat. Who else wants to answer? Is it same or different? Same. Okay, so you answered. Like the reason? Yeah, it's a factor, but because AI हर चीज़ों में रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट बहुत चीज़ों में वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, और जो काम 2 से 1 दिन में होते थे वो 2 घंटे में कर रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है. ह्यूमन का काम तो वो कर ही रहा है. Let's see the result. Okay, so you people were right. Let's see what's next. Who's ready for this? She raised. Ravi. He also wants to. She raised the first. It's a fact. Why? We know that the computer has many systems and functions, and AI is just a part, not whole. Is it same? The reason might be different. No? Expect because the computer is the first part and the AI is comes. That's why it's differently system functional. So let's see the result. So yes, you
you were right. Let's he raised his hand first. इट्स द मिथ। एआई को सबके बारे में तो नहीं पता। जैसे लाइक एआई को बस वो पता है जो अपन ने उसमें लिखा हुआ है, जो अपन ने उसमें डाला हुआ है, पर अपन ये नहीं कह सकते उसको सभी कुछ पता है। सुमित, Anybody else? AI में बस वही डाटा होता है, मतलब जो से रिसेंटली मिलता है, और बहुत सारा डेटा ऐसा भी होता है जो नहीं मिल पाता है, तो क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है वर्ल्ड में और हर चीज़ इंटरनेट पे अपलोड नहीं रहती या नहीं मिल पाती, तो AI ये मिल। अनुष्का। चंद्रकांत, ये एक मिथ है क्योंकि AI के पास पूरा डाटा नहीं रहता, और हम जो देते हैं वही करता है, उसके डाटाबेस में जो रहता है वही। और ये तो अभी जो करंट चल रहा है इसको भी पता नहीं रहता, हम जो बताते हैं तभी पता चलता है। Because AI does not have everything, because we have data that's correct and we use a new way to represent it, but it does not know everything about what's our program and anything. Anybody else? Let's see the answers. So yes, you were right. Let's move ahead. Who wants to answer for this? Raise your hands, guys. इट्स द फैक्ट। क्योंकि अपन जो डाटा उसमें देते हैं, जैसे अपन कुछ चैट जीपीटी से सर्च कर रहे हैं, तो वो डाटा कहीं ना कहीं उनके पास जा रहा है, तो अपना डाटा सेव नहीं है अपने उस पे, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि वो सेव है। सेव सुमित, Fact, because recently we have trained the Kirby art, we give the photos and some photos are misused in other ways. That is a fact. Anybody else? Show the Let's see the answer. So yes, you were right. Let's move ahead. Please everybody try to answer. It's not that hard. We're getting same hands raised. It's a fact, and we are all progressing and this. Like AI has already replaced humans in many jobs, and so we have to think thoughtfully before we go in any kind of field. सुमित, तो इट्स द फैक्ट, क्योंकि एआई मतलब अपन को अपॉर्चुनिटीज नई नई दे रहा है। जैसे वो नई नई मतलब जिसको अच्छे से आता है तो उसको नौकरी अच्छे से मिल रही है, उसका प्लेसमेंट उतना ही हाई जा रहा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एआई का है। बट उसकी कुछ गलत वो भी चीज है कि वो अपन जैसे अपन को किसी से कुछ करना है तो अपन उसके जरिए पर एआई के जरिए उसकी कुछ गलत इमेजेस या वीडियोस वगैरह अपने सब कर सकते हैं, तो अपन वो हार्म भी पहुंचा रहा है। Anybody else? Guys, only two of them are answering. You don't want prize. Everybody. People interacting. You can see the prize. It's a big box. आंसर आ नहीं रहे, आंसर ही नहीं देना है। AI से अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आती हैं, जैसे ऑब्वियसली जिनको जॉब्स बढ़ रही हैं और बहुत सारा काम आसान भी बनाता है, बट रिस्की है। जैसे अभी इंस्टा का न्यू अपडेट आया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है साफ साफ कि वो पोस्ट एंड रील्स वगैरह यूज करेंगे उनके AI को ट्रेन करने के लिए, तो हमारा डेटा उनके पास जा रहा है, लाइक पर्सनल पिक्चर्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा रिस्की रह सकता है।
Let's do a big round of applause for everyone. Mostly वो guys correct. नाम से ट्राइपॉड बोलना है। ट्राइपॉड। So what's next for Innova? A lot. Workshops, hackathons, collaborations, and creative challenges that help you grow and showcase your talents. And no matter your background, it's from CS, coder, designer, or just a curious soul, Enigma has something for everyone. Applause for the dream team that will keep Enigma's energy alive. Now let's call upon Ushika Jain, our president, for the team intro. It all. So like really, a huge round of applause for this team. Next is Tanmay Parashar, our event manager. And yeah, he also managed everything. Like आज का पूरा काम इसका था and he did it. कल रात को एक concert में गया था सीधे मौत की and still he is here today, so that's a big thing. Next slide please. Okay, Rafia Ansari, our research team member. She is also from second year, and these people wrote the script beautifully, did all the work we told them, and yeah, it was good. Next is Anish Kumar, our graphic designer. He did not join us today, but that guy did all the graphics. उसको जितना बोला गया, even when he was in train yesterday night, he still joined the meet and tried to do everything. So yeah, amazing team. Next is Tanu Dubai, our content writer. She is also from second year. And I will say she is the most excited member in the team. कि इसके लिए ये करना चाहिए, दीदी ये वाला idea है, we can do this and we can do that. So a really wonderful thing. Next is Khushbu Patil, our video editor. This girl is single-handedly managing the video editing part and social media and everything. So that is a very big thing. Next. Okay. Jayesh is not with us today. Shreyansh Pandit. He is our tech lead. I don't think I need any introduction for him. He already introduced himself a while ago. Next is Vedant Saubri, our research head. So these people are from third year. Rahul, Vedant, Shreyansh, me, and remaining team is from second year. After that we have Adarsh Malviya. I think systems. Yeah, so he is the man who was behind the scenes and managing it all. And I think he contributed in the website and all, ideas and all. So yeah, he is in tech team, second year. Is there anyone else? Okay, so yeah, we only have your picture, please come. He is Mr. Manas Raj and he is from second year. He actually joined us yesterday only, he and his team, so we don't have everyone's picture. So, exactly. So Nikhil, Adi and Ritik. He is, I think, he is managed, it's fine, come here. These guys did the PPT last night, I think until 2 AM and all, and Manas is handling all the work today. So, honestly, and Priyanshu, please. Aaiye. This guy did not take any post, but he is the official founder of the club. और आप लोग ने भी देखा होगा, he manages everything. So yeah, he is behind it all. So a huge round of applause for this wonderful team we have. And the photography people too are doing a good job. Can someone take a team picture right now?
Thank you so much everyone. Please go back to your seats. एंड स्पेशल मेंशन टू फोटोग्राफी टीम आल्सो, जिनको हमने सिर्फ लास्ट टाइम पे बोला है एंड उन्होंने सब चीजें मैनेज लाइक ट्राइपॉड वगैरह और जो भी स्टैंड्स वगैरह थे कैमरा के एंड वो सब चीजें। फोटोग्राफी क्लब आल्सो इतना कॉलेज, तो उनको स्पेशल मेंशन आल्सो। Now let's take a quick tour of our pride, the Enigma Club website. You will find our event archives, resources, team profiles, and all our achievements. Don't forget to explore and maybe even contribute your own articles someday. Okay, so this is our website. कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही हो नहीं लग रही हो, जैसी भी लग रही हो सब ठीक है, क्योंकि आगे से आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ और सब चाहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ओपन सोर्स को प्रमोट करते हैं। सो हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी चेंजेस अब इसमें आए वो सब आपके थ्रू आए। बाकी के आगे के जितने चेंजेस है, आपको जो लगता है कि ये ऐसा सही नहीं लग रहा है, ये कलर सही नहीं है, हटाओ। आपको बस क्या करना है, पीआर रेज करो। आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, इशू क्रिएट करो। इशू मेंटेनर्स देखेंगे और फिर मेंटेनर्स रिव्यू कर लेंगे, और अगर लगता है आप डिस्कस करेंगे वहां पे गिटहब पे, हमारी रेपो पे। और ये हमारी रेपो है। और हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गिट एंड गिटहब? अभी तक किसने काम किया है, किसने अपने प्रोजेक्ट्स को पुश किया है गिट पे? ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो बेसिकली गिट एंड गिटहब डेवलपमेंट जर्नी में सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आप अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स लोकल पे रखते हैं और लोकल पे रख के बस लोकल पे ही रखते हैं। बट आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए, आपको शोकेस करने के लिए और आपकी फाइल्स को ऐसे लंबा समय तक सेव रखने के लिए आपको गिट पे पुश करना चाहिए। और आगे क्या होता है कि कंपनीज वगैरह ना आपकी गिट प्रोफाइल भी चेक करती है। लाइक आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपने बना ली, आपने अपनी लीड कोड प्रोफाइल पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है देन आपको अपनी गिट प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आप जितने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं सब कुछ इधर डिप्लॉय कीजिए, यहाँ पे शोकेस कीजिए, लोग देखेंगे, रिक्रूटर्स देखेंगे, उनको अच्छा लगता है, बहुत सी बार देखते हैं वो, तो जरूरी होता है यहाँ पे। एंड वेबसाइट शो ठीक है, तो ये तो अपनी वेबसाइट का होम पेज है। स्क्रॉल डाउन, अबाउट तो बता ही दिया था, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। उसके बाद आज जो इवेंट चल रहा है ये डिस्प्ले हो ही रहा है यहाँ पे। ये कुछ फीचर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम वर्क कर रहे हैं, इन पे कॉन्स्टेंटली वर्क चल रहा है, और अभी तक तो कोर टीम मेंबर्स ही वर्क कर रहे हैं। और आगे से मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आपका सारा कंट्रीब्यूशन आगे से पूरा कंट्रीब्यूशन आपका भी रहे हर चीज में। तो लाइक हम सेंटिमेंट एनालाइजर, मेडिकल इमेज क्लासिफायर, इवन आपने अभी जो गेम खेला था ना, लाइक कि इमेज देखना है कि कौन सा एआई के थ्रू जनरेट किया हुआ है या वो, उसके पीछे भी हम एक एक्सटेंशन बना सकते हैं कि एक एआई एक्सटेंशन जो कि बताए कि कौन सा सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट है वो फेक है, कौन सा फोटो फेक है, आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे एक्सटेंशन पहले से है, एग्जिस्टिंग है, बट हम वो भी बिल्ड करेंगे आपके साथ मिलके। और इसके अलावा हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इवेंट्स का। ये तो हमारी टीम हुई गई, और हाँ, जितने भी इवेंट्स होस्ट होने वाले हैं वो सब इस इवेंट्स वाले टैब में, इवेंट्स वाले सेक्शन में होस्ट होंगे। एंड हमारा जो करंट इवेंट चल रहा है आज का वो एनिग्मा ओरिएंटेशन है। उसके अलावा अगला जो इवेंट आने वाला है नेक्स्ट 4 वीक्स में होने वाला है वो, और काफी मजा आने वाला है। लाइक आपने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, बट इस हैकेथॉन में आपको स्टार्टिंग से इतनी सारी लर्निंग्स मिलने वाली, क्योंकि हैकेथॉन्स में आप बिल्ड करते करते सीखते हो। आपको हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता हो, आपको बेसिकली कुछ भी नहीं आता हो, बट आप डिजाइन कर सकते हो, आप टीम बनाओ, डिजाइन करो, बिल्ड करो, ब्रेनस्टॉर्म करो आइडियाज को, तो उससे आपकी थिंकिंग बढ़ती है, आपको बिल्ड करने का, जल्दी बिल्ड करने का। लाइक ऐसे अपन अगर सीख रहे होते हैं
तो हम मंथ्स लगा देते हैं, वीक्स निकल जाते हैं कि अरे चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट जब हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इतने कम टाइम में, इतने ज्यादा कम टाइम में आप इतनी सारी चीजें सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ हैंडल करना है, डिप्लॉयमेंट से लेके ये वो, तो आपको सीख के और करते रहना होगा। देन हम उसके बाद कैगल का भी कंपटीशन करने वाले हैं, क्योंकि एमएल का क्लब है, तो कैगल पे हम एमएल के कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगे। और उसके अलावा हम अगली चीज है कि रिसोर्सेस में ऐसा है कि आपने अभी आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कहां से पढ़ना है, कहां से क्या आर्टिकल मिलेंगे, क्या अच्छे आर्टिकल है, क्या अच्छे वीडियोस हैं। रिसोर्सेज सेक्शन पे ऐसा रहेगा कि आपका ये डेली विजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, जितनी जरूरत है, जितनी सारी चीजें हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ मिल रहा होगा। ये सब हमने फीचर्स इसलिए बिल्ड किए हैं क्योंकि आपको हेल्प हो। तो हम इस पे सारी चीजें बता रहे होंगे कि कौन से अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, कौन सी अच्छी प्लेटफॉर्म्स है, कौन सी टेक्नोलॉजीज है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं। एंड देन हम ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग सेक्शन पे ये एक बहुत ऐसा सेक्शन बनाया गया है कि यहाँ पे अभी तो टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट आगे चल के आप सब जैसे जैसे इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब मेरे लिखे हुए ब्लॉग्स हैं और बाकी टीम मेंबर्स भी ब्लॉग्स लिखते हैं। एंड यहाँ पे जब आप अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखने में ऐसा नहीं है कि कोई राइटर है तो वो ब्लॉग्स लिखे, या कोई आर्टिकल लिख रहा है तो वही लिख सकता है। लिखना सबको चाहिए, क्योंकि कंपनीज में जाके होता क्या है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने पड़ते हैं। आपने जो कोड लिखा है ना, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करके देना पड़ता है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब लर्निंग के टाइम ही, जैसे आपने कुछ चीज लर्न की, आपने पढ़ा कि जनरेटिव एआई क्या होता है, आपने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, तो आपने जो आज पढ़ा उसको आज ही जाकर क्या करना है कि हैशनोट पे, मीडियम पे, ऐसे ब्लॉग राइटिंग वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके ब्लॉग लिखें। उससे क्या होगा कि आपने जो भी आपने पढ़ा और आपने जो नहीं पढ़ा वो आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको इतना डीपली अंडरस्टैंड करोगे कि, क्योंकि आपको लिखना है, आपको पब्लिक के लिए लिखना है, जिससे कि पब्लिक को हेल्प हो सके। तो उसके लिए आप ब्लॉग लिखेंगे ना, तो ऐसा सीन रहेगा कि आपका दिमाग बिल्कुल इतना उसमें डीपली घुस जाएगा कि आपको वो टेक्नोलॉजी ऐसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो पढ़ लिया वो आपने लिख दिया और वो बिल्कुल अंदर तक है। सो इसमें ऐसा सेक्शन, ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे हम कि होना क्या है कि इसी टैब पे क्या होने वाला है कि आप जितने भी मेंबर्स ज्वाइन होंगे, या फिर नहीं भी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन सेक्शन है। लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने ब्लॉग्स को इंट्रोड्यूस करना है कि हाँ ये स्टूडेंट लॉगिन, मेंबर लॉगिन सेक्शन है। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करने वाले हैं तो आप एज ए ऑफिशियली, हम अभी नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ईयर वाले होंगे, बट हम बिल्कुल यहाँ से जो प्रियांशु ने ऑनलाइन वाली बात बोली, तो यहाँ से हम आपका पूरा देखते रहेंगे कि हाँ आप बिल्कुल एक्टिवली हमारे साथ हैं, और हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑफिशियली नहीं कर सकते ना, बट अनऑफिशियली ऐसे तो कर सकते हैं। ऑनलाइन हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपको जो पूछना है हमसे डिस्कस करेंगे, हमारा डिस्कशन सेक्शन है उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मेन काम ये है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि नहीं पता होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कि स्टार्ट कैसे करना होता है चीजें। तो यहाँ पे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी कोर टीम मेंबर्स हैं, और बाकी आपस में भी जितने भी लोग हैं, सब कुछ इतना अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड होगी कि हम साथ में मिलके काफी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे अकेले अकेले नहीं पता चलती चीजें, बट जब साथ में होते हैं तो काफी चीजें पता चल रही होती है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये पर्सपेक्टिव भी होता है, वो पर्सपेक्टिव भी होता है। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करने से क्या होता है कि सबके पर्सपेक्टिव जब मिलते हैं तब जाके नई नई चीजें पता चलती है कि अच्छा ऐसा होता है। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं कि लीडर बोर्ड सेक्शन, जो भी कंटेस्ट वगैरह होने वाले हैं, जो भी हैकेथॉन्स वगैरह होने वाले हैं, तो इसमें क्या होने वाला है कि आपका एक लीडर बोर्ड सेक्शन में नाम आने वाला है। आप लाइव लीडर बोर्ड चलते रहेंगे, अगर कोई लाइव ऐसे हैकेथॉन्स है उसमें पॉइंट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो परफेक्टली वो लाइव डिस्प्ले होता रहेगा। और ये जो ऐसे पास्ट इवेंट्स टाइप कुछ हैं जो कि पहले कराए गए थे, हमने हम किसी इवेंट्स में थे तो उसमें कराए थे। और लीडर बोर्ड से ये रहेगा कि जो भी अगला आप किसी को वेबसाइट दिखाएंगे तो आप उनको शोकेस कर पाएंगे कि मैं इस चैलेंज में इस नंबर पे था। और इसके अलावा आप जैसे कि ब्लॉग्स में जो भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उसमें होगा क्या कि एक हॉल ऑफ फेम करके क्या बोल सकते हैं, हॉल ऑफ फेम करके एक टैब होगा, एक
फीचर होगा, उसमें आप क्या करेंगे कि जो जिसके भी आर्टिकल्स मतलब जिसके भी कंट्रीब्यूशन इतने इफेक्टिव लगेंगे कि हाँ यार मतलब ये बंदा कंसिस्टेंटली, क्योंकि हमारे लिए तो है नहीं, आपकी लर्निंग भी इंप्रूव हो रही है, तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हॉल ऑफ फेम में भी आपका फोटो वगैरह और मतलब आपको शोकेस करने के लिए रहेगी चीजें कि हाँ एक क्लब था एनिग्मा करके, उसमें हमने ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट किया था। और ओपन सोर्स चीजों में भी हम आपको बहुत सारा गाइड करने वाले हैं, क्योंकि ओपन सोर्स एक बार आपने उसका टेस्ट अगर ले लिया तो फिर आपको मजा आने लगेगा, मतलब इतना मजा आता है कि रुकते नहीं है फिर। लाइक जो बड़े बड़े जो इवेंट्स चल रहे हैं लाइक जीसॉक, अगर किसी ने सुना हो जीसॉक के बारे में, गूगल समर ऑफ कोड, तो उसमें हाँ जीसॉक, इसमें हम ओपन सोर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक अभी इस साल का तो खत्म हो गया है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, और अभी से कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू। लाइक उस वेबसाइट पे आप पीआर रेज कीजिए। लाइक रेपो दिखा दो, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिसको भी गिट एंड गिटहब के बारे में नॉलेज नहीं है, इसमें बेसिक सिंपल काम है। करना क्या होता है कि ये रेपो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप जाके आप कोड बेस पढ़िए, पहले तो आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ठीक है, वेब डेव से रिलेटेड। लाइक ये रिएक्ट जेएस में बनी हुई है वेबसाइट, तो इस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा बहुत फ्रंट एंड वगैरह करेंगे। तो उसके बाद जब आपको कंट्रीब्यूट करना है एक्चुअली, तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो भी लगेगा कि नहीं यार इस वेबसाइट में मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता था, ये चीज सही नहीं है, ये वो है, ये ऊपर नीचे है, तो डिस्कस करने के साथ साथ आप इशू क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू आप हमारे तक भेजेंगे। हमारे मेंटेनर जो है वेबसाइट के, लाइक जो भी टेक टीम में हमारे हैं, वो लोग रिव्यू कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली। तो इस टाइप से कुछ आपकी जब पीआर मर्ज होगी ना, एक फील ही अलग होता है जब आपकी पीआर मर्ज हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ तो किया है, लाइक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, मतलब दुनिया के लिए किया है। जितना दुनिया दे रही है अपने वो डेवलपर्स को, डेवलपर्स से ही मिल रहा है, तो वापस से उन्हीं डेवलपर्स को अगर दे रहे हैं हम, तो काफी सही चीज होती है। और बेसिकली इंडिया में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स का ऐसा हो गया है ना इमेज का, कि इमेज रही नहीं है। क्योंकि पता है क्या हुआ था, एक स्टोरी सुनाता हूं। पिछले साल लाइक होता रहता है, मतलब बच्चों को नहीं पता होता, लाइक गिट एंड गिटहब की ट्यूटोरियल्स देखने के लिए वो चैनल्स फॉलो करते हैं, और फिर चैनल्स फॉलो करने के बाद क्या होता है कि चैनल वाले गलती से बोल देते हैं ऐसी शोकेस करने के लिए कि इस टाइप से आप पीआर बना सकते हैं। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट होती है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म। पीआर ऐसा होता है, वही मैंने जो समझाया कि कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी चेंजेस अपलोड करते हैं। इसमें एक फाइल होती है रीडमी करके। रीडमी फाइल का इतना सा काम होता है कि आपकी जो पीआर है उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, ये इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ये कोई भी लिख सकता है। बट अच्छे डेवलपर्स क्या कर रहे होते हैं कि अच्छे डेवलपर्स ने बताया होता है ऐसा कि ऐसे ऐसे करके, वो तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पर बच्चों को नहीं पता होता, और वो क्या कर रहे होते हैं कि रीडमी फाइल को अपडेट कर रहे होते हैं। दिस इज बेसिक इंग्लिश लिख रहे हो आप वहां पे, और वो भी चैट जीपीटी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके लिख रहे होते हैं। तो अपने को सबसे एक मेन चीज ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी रेपो में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रीडमी फाइल को अपडेट ना करें, वो एक कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो बेसिकली आप अपने आप को समझा रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है, ओ ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं ओपन सोर्स का ये हो गया वो हो गया हूं। बट रीडमी अपडेट करना इज लाइक चीप थिंग, क्योंकि इससे इंडिया की बहुत इमेज खराब हो चुकी है। एक इवेंट होता है हैकटोबर फेस्ट करके, अक्टूबर के मंथ में होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको 4 या 5 पुल रिक्वेस्ट रेज करनी होती है, और उसके बाद आपको एक टी शर्ट मिल जाता है। और इंडिया के बच्चे, इंडिया के लोग इतने क्रेजीली, मतलब अरे स्वैग मिल रहे, गुडीज मिल रहे, चलो चलो अपन कुछ भी करेंगे इसके लिए, तो रीडमी पे रीडमी अपडेट कर रहे हैं। और छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, एक्सप्रेस जेएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रीडमी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही केस हुआ था, भैया दीदी ने बता दिया कि रीडमी अपडेट कर दो, तो उनने जब रीडमी अपडेट किया तो टन्स ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब इतनी सारी पुल रिक्वेस्ट हो गई रीडमी अपडेट करने के लिए। दिस इज नॉट द कंट्रीब्यूशन, बट उनको लग रहा है कि ये कंट्रीब्यूशन है, पर उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था, कैसे कैसे सो कॉल्ड भैया दीदी ने बता दिया था, और फिर उसके बाद ये सब सीन क्रिएट हो गया था। उससे इंडिया की इमेज खराब होती है। बच्चों को नहीं होता नॉलेज, बट इंडिया की इमेज खराब होती है। इंडिया के डेवलपर्स को ऐसे देखा जाता है कि लाइक इनको कुछ नहीं आता है।
तो दैट्स व्हाई एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है इस रेपो में भी रीड में अपडेट नहीं करना है, क्योंकि रीड में अपडेट करना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और आपको कोई भी बोले तो वो नहीं होता है कंट्रीब्यूशन करना है तो आप फाइल्स में चेंजेस कीजिए, आप डिजाइंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप यूआई चेंज कर सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपको जीसॉफ्ट तक जाना है तो उसके पहले आपको गिट सीखना पड़ेगा, उसके पहले आपको चीजें देखनी पड़ेगी कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे होता है, कैसे मेंटेनर से बात करते हैं। अगर आप जीसॉफ्ट में जाएंगे और एक दिन बस ऐसे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया उससे नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि आपको मेंटेनर से बात करनी पड़ेगी। मेंटेनर्स डिस्कशन सेक्शन में बैठे रहते हैं, उनसे बात कीजिए। आप जब इशू क्रिएट करेंगे तो इशू भी आप उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से कंट्रीब्यूशन होता है ओपन सोर्स में, और ये एक तरीका है। इसमें भी और भी तरीके होते हैं, लाइक आप मतलब जैसे जैसे अपन और ज्यादा कनेक्ट होते रहेंगे ना, तो मैं आपको चीजें सिखाता रहूंगा कि लाइक कन्वेंशनल कमिट्स क्या होते हैं। लाइक अभी क्या होता है कि अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी कमिट्स लाइक एक मैसेज देते हैं। जब अपन पुट रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं ना, कोई कोड चेंज कर रहे होते हैं, तो एक मैसेज ड्रॉप कर रहे होते हैं गिट पे कि मैंने ये चेंज दिया, ठीक है। बट क्या करते हैं लोग कि ऐसे लिख देते हैं कि आज मूड हुआ और मैंने ये पुट रिक्वेस्ट मार दी और ये चेंज कर दिया। इतना अनप्रोफेशनल, और इतना उससे क्या होता है ना कि आपकी जो पीआर हिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। तो इसलिए एक कन्वेंशनल कमिट करके एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, उस कन्वेंशनल कमिट के अकॉर्डिंग ही कमिट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही पीआरस को कमिट्स को देना चाहिए आगे। एंड तो ओपन सोर्स के बारे में ये बात हुई, जीसॉफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने चीजें सीख ली, कैसे क्या करना है, पुश कैसे करना है, पुल कैसे करना है, चीजें आप गिट एंड गिटहब सीखेंगे तो आपको पता लगेगी। गूगल समर ऑफ कोड, लाइक ये इसके लिए हर बच्चा मर रहा होता है कि यार इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, और आपको भी मरना चाहिए कि हाँ इसमें हो जाए, क्योंकि इसका स्टाइपेंड जो है वो भी नेक्स्ट लेवल है, लाइक 2.5 लाख 3 लाख अलग ऐसे स्टाइपेंड से। सो जीसॉफ्ट के बारे में हम और आगे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे आपको। और इसमें होता क्या है कि बेसिकली गूगल जो है वो खुद से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता है। गूगल क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पिक करता है, लाइक इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक टेंसरफ्लो हो गई और पाइथन हो गई, ऐसे अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स है। उनके कोड बेस में हम पुश कर सकते हैं अपने कोड को। और लाइक आप जैसे अभी के मंथ से अगर स्टार्ट करेंगे नवंबर दिसंबर, और ये लगभग फरवरी में आपका प्रपोजल सबमिट होता है। तो अभी जब आप स्टार्ट करेंगे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ें, एक नहीं दो को, क्योंकि हर साल जरूरी नहीं है कि वही वाली ऑर्गेनाइजेशन रिपीट हो जाए। तो आप Good afternoon, everyone. A very warm and cheerful welcome to each one of you, especially the faculty members and our HOD, Dr. Tripti Saxena. Today, we have gathered not just to celebrate innovation, but to experience the power of ideas that redefine the future. To mark the beginning of today's event, we invite our respected faculty members and dignitaries for the lighting of the lamp ceremony. Hello. Apologies, teachers. So, well, I would like to invite our HOD ma'am, Dr. Tripti Saxena, Dr. Shailendra sir, he was a wonderful ML teacher to us. Dr. Kamlesh Namdev, he is our current deep learning teacher, and Mr. Adarsh Roshan sir, he taught us OOPM. He might be teaching some subject to all of you guys as well, and he is also a very wonderful teacher. So please a huge round of applause to everyone. Thank you so much. So, Ram sir is also here, so yeah. Now I would like to call Priyanshu to please present a sapling to Dr. Tripti Saxena ma'am as a token of gratitude and respect.
invite Rahul Lodhi to present the sapling as a token of respect and gratitude to Dr. Sharan sir. Guys, I would like to invite Vedant Sobri to present the sapling to Dr. Kamlesh Namdev sir as a token of respect and gratitude. I would like to invite Shreyansh Pandit to give this sapling as a token of gratitude and respect to Mr. Adarsh Roshan sir. I would like to invite Manas Raj to present the sapling to Ram sir as a token of gratitude and respect. Thank you so much, teachers. Anyone would like to? Okay, so I would like to invite Tripti ma'am now for a few words so that when we are starting an ML club, so she has to say something. Good morning, all of you. बेसिकली ये क्लब आप लोगों के लिए है। AI क्लब हम लोग ओपन कर रहे हैं। AI इज द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिनेरियो, राइट? सो जितना हो सके इन क्लब्स के थ्रू नॉलेज गेन करने की, नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, है ना? ओके, हर तरह से कहाँ से हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है अपनी प्रोफाइल को ठीक करने के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच। Any other faculty would like to share a few words of wisdom related to some ML projects or DL projects like students should build or something? Kamlesh sir, please. Okay, I use round of applause for Kamlesh sir. Good afternoon to all of you. सबसे पहले मैं एचओडी मैम को थैंक्स कहना चाहूँगा। इतने अच्छे हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, अच्छे पेपर्स के लिए काम कर सकते हैं। तो सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट लेना है और जो भी आप लोगों के आइडियाज़ हैं उनको हमको इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके आना है और अपने AIML डिपार्टमेंट को हमको AIDS डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। Anyone else? Ram sir, Sharan sir, Adarsh sir. Okay, so we will continue with our event. Shreyansh? Okay, so continue with the website and information. Okay, so I was talking about orgs in GSOC. Like basically Google क्या करता है कि खुद से आपको ऐसे गूगल में कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन बुलवाता है वो। लाइक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, एआई से रिलेटेड लाइक रॉकेट चैट है और एपीआई लैश है, ये काफी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक अभी जैसे कि आप काफी जैसे टेंसरफ्लो तो बहुत लोगों ने सुना है, वो भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रहे हैं वो। मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि आपकी अगर एक भी पीआर अगर मर्ज हुई तो आपके दिल को मतलब ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ बड़ा काम किया है, क्योंकि ओपन सोर्स में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन में वहां का पार्ट ना होते हुए भी अगर आपका कोड वहां पे चल रहा है
तो इतनी ज्यादा प्राउड होने वाली बात है कि यार आपका कोड से वो कंपनी में कुछ चल रहा है। तो बेसिकली गूगल क्या करता है कि इन कंपनीज इन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बुलाता है और फिर आपको भी एक इसी सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपर्स को, जिससे कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें। देखो बेसिकली होता क्या है कि जीसॉफ्ट इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आपको प्रीमियम वो दे देता है कि यार आपने जब जीसॉफ्ट का अगर आपके पास इंटर्नशिप वो है कि आपने गूगल में वो कहने का हो जाता है कि आपने जीसॉफ्ट में अगर कंट्रीब्यूट कर दिया है और आपका अगर लग गई वहां पे इंटर्नशिप, तो एक तो स्टाइपेंड है 2.5 से 3 लाख, तो आपके अगर सेकंड थर्ड ईयर में 2.5 से 3 लाख मिल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार चलो वो काम करने के पैसे तो हर कोई देता ही है, बट ये काम करने के पैसे नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते, काम तो करने के पैसे नहीं, बट होता क्या है कि ये आपको ओपन सोर्स में आने का तरीका सिखाता है। क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि डेवलपर वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे कि आपको मिल रहा है तो वैसे के वैसे आप दीजिए ना, तो बहुत सारी मतलब ऐसे चलती रहती चीजें, गिविंग एंड टेकिंग, तो ऐसे टू वे जब चलता है ना तो कम्युनिटी ग्रो करती है और डेवलपर कम्युनिटी को ग्रो करना भी चाहिए आगे के लिए, ठीक है। तो और मैं क्या बता रहा था कि आप यहाँ पे जाके जब ऑर्गेनाइजेशन आज से आप जीसॉफ्ट की वेबसाइट डेली विजिट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आप स्किल सीख रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप एआई सीख रहे हैं, आप पाइथन सीख रहे हैं, C++ सीख रहे हैं, जो भी चीज सीख रहे हैं इस पे आइए, आप अपने इंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी सर्च कीजिए, ठीक है, और फिर उनका कोड बेस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ना लाइक ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में आपने पूरा कोड बेस देख लिया, ऐसा होगा कि शायद आपको कुछ लाइन समझ में आ जाए किसी फाइल की, तो हो सकता है अगले दिन कुछ और लाइन समझ में आ जाए किसी लाइन की। जैसे जैसे आप स्किल्स बिल्ड करते रहेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे जब डेली आके जब कोड बेस देखने वाले होंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आज और समझ आ रहा है, आज और समझ आ रहा है। तो बिल्ड करते करते टाइम मैंने मतलब आप YouTube पे भी देखेंगे काफी सारे ऐसे एग्जांपल है कि जिनकी स्किल्स इसके साथ ही बिल्ड हुई है। लाइक उनको पहले कुछ नहीं आता था, फिर उन्होंने क्या किया कि सीखना भी स्टार्ट किया, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जो वो सीख रहे हैं अगर उनको समझ आता है तो उनने फिर कंट्रीब्यूट किया, ऐसे कर करके और वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं मतलब जीसॉफ्ट में, और अच्छा खासा उनका प्रीमियम वो बन गया, एक टैग मिल गया उनको कि जीसॉफ्ट, लाइक आईआईटी का टैग होता है ना, इतना बड़ा नहीं बट हाँ एक वो हो जाता है कि यार जीसॉफ्ट में इंटर्नशिप। तो आप डेली, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इस पे आए, इस पे चीजें आपके इंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी सर्च कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना बहुत जरूरी है। आपने अगर ऐसे रैंडमली किसी भी ऑर्ग में अगर आप कंट्रीब्यूट करते रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन आप पकड़ लो और फिर उन ऑर्गेनाइजेशन के आप कोड बेस देखते रहो, कॉन्स्टेंटली देखो कि क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ, उनके क्या इश्यूज क्रिएट हुए हैं। लाइक इश्यूज वो होता है कि किसी ने क्रिएट कर रखे होते हैं, लाइक आपको मतलब वो बता रहे होते हैं कि ये काम आप कर सकते हो, तो वो अलग अलग लेवल्स के होते हैं, लाइक इजी, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो इस हिसाब से आप, मैं यही बोलूंगा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कीजिए और सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि जो एनिग्मा की रेपो है उसमें आप पीआर आज से रेपो में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, तो उससे आपको एक लो लेवल पे आइडिया मिलेगा, क्योंकि हम तो आपके साथ ही हैं, तो आप कुछ गलत भी करेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होती चीजें, ऐसे होती है। तो फिर जाके आप जीसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनर से बात कर पाएंगे। जब आप हमसे बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तब जाके तो आप बड़े मेंटेनर से बात करेंगे कि बात होती कैसे प्रोफेशनली। तो इन सब के गाइडेंस के लिए ये क्लब खोला गया है कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे गाइड करना है, क्योंकि नहीं पता होता, हमको भी नहीं पता था, बट चीजें ऐसे इंटरेक्ट करते करते कम्युनिटीज में ज्वाइन होकर ये चीजें पता चलती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, और वेबसाइट एक और बार दिखा दो, उसमें ये आप नोट कर लीजिए www.enigmaclub.tech, ठीक है। और आप इसमें हाँ सीनियर्स के साथ आप काफी जीसॉफ्ट वाले सेशन भी, वर्कशॉप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज जरूरी है लेना, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। और दिस इज वेबसाइट का URL, डोमेन नेम नोट कर लीजिए। आप आज से इस वेबसाइट पे डेली रिसोर्सेज देखेंगे, आपके ब्लॉग्स देखेंगे, और आपके लिखे हुए ब्लॉग्स हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर वो हॉल ऑफ फेम में जो आपका फोटो लगेगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दिस इज इट, दिस इज द वेबसाइट, एंड आई हैंड ओवर टू
ओके हाँ सो जो हम लोगों के अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं लाइक इवेंट्स में आपने अभी देखा ही होगा जेनीआई वाला और कैगल एमएल वाला। तो और वी हैव रिसर्च लीड वेदांत चौधरी। तो कैगल एमएल कॉम्पिटिशन कैसे होने वाले हैं क्या वो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस कितने लोगों ने यहाँ पे केगल सुना हुआ है? अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर जाओगे तो केगल के अंदर बहुत सारे डेटा सेट्स वगैरह मिलते हैं। अभी तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, नोटबुक वगैरह बनती है, लेकिन सबसे मेन काम क्या रहता है केगल का कि उसके जो डेटा सेट्स रहते हैं कैसे डेटा सेट्स को यूज करना रहता है, क्या करना रहता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कैसे मैं बताऊंगा, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल वे में अगर आपको मशीन लर्निंग को अप्रोच करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। मैंने खुद एक स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था जो कि था फेक न्यूज प्रेडिक्शन सिस्टम। अगर लोगों ने देखा होगा तो उसका 2 CSV फाइल्स आती है डेटा सेट्स, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे को उतना कुछ नॉलेज नहीं था मशीन लर्निंग के बारे में, उसको मैंने किया, वहां से मैंने समझा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, मशीन लर्निंग क्या होती है, वैसे कैसे समझ में आएगा अपन को। अगर आप लोगों ने देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग होती है, क्या करती है मशीन को हम ट्रेन किए हैं कि कैसे वो प्रेडिक्ट करके बताए किसी चीज के बारे में, वही चीज होती है मशीन लर्निंग। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, अगर आपको किसी चीज को बनाना है कि वो कुछ प्रेडिक्ट करके बताए, आपने उस मशीन को ट्रेन कर दिया, जितने भी LLM वगैरह है वो सब ट्रेन हो रहे हैं और आपके डेटा पे आप ही को बता रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आपको इसमें आगे जाना है तो आपको ये कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो कुछ एक यूजफुल चीज को प्रेडिक्ट कर रही है। वैसे हमारा जो केगल एमएल कंपटीशन है इसमें रियल टाइम जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उस पे डेटा सेट अवेलेबल होगा, उस पे आप लोगों को उस मॉडल को ट्रेन करके एक्यूरेसी इंप्रूव करनी होगी और आपको अपना कोड देना होगा। उसके हिसाब से हम लोग एक लीडर बोर्ड जनरेट करेंगे जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी है कोई भी इवैल्यूएशन मोड के हिसाब से। तो ये कंपटीशन जो होगा ऑनलाइन मोड पे होगा और जो भी आप मॉडल उसमें डालेंगे उसमें जिसका भी जो सबसे अच्छा मॉडल आता जाएगा तो एक एक्यूरेसी रहती है, मतलब कुछ भी इवैल्यूएशन जो भी मोड होगा उसके हिसाब से आपका जो भी रैंक होगा वो बताते जाएंगे। उसके बाद जेएनएआई, कितने लोग जानते हैं कि जनरेटिव एआई होता क्या है? इसमें नहीं पता जेएनएआई के बारे में। गाइस ये तो कॉमन है यार, जीपीटी का खुद ही परफॉर्म नहीं, जीपीटी तो सुना ही होगा। हाँ तो बस ठीक है, जीपीटी सुना तो जेएनएआई तो वही है, कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग। देखो नाम से समझ में आ रहा है जनरेटिव, जनरेटिव मतलब क्या, कुछ जनरेट करना। जनरेट क्या, इमेजेस, टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, ये सब। तो ये जेएनएआई होता है। अब जेएनएआई के अंदर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स ने इतना ज्यादा जो टूल्स आ चुके हैं वो इतना ज्यादा हमें हेल्प करते हैं। मैं नहीं इमेजिन कर सकता अगर मैं बहुत पहले होता, अगर मैं इंजीनियरिंग करता 2016 में जब कुछ नहीं था ऐसा, तो पता नहीं लोग कैसे करते थे, आई कांट इवन इमेजिन। सो अब क्या है, आगे कौन इंसान बढ़ेगा जिनको इसको यूज करना आता है। अगर कोई इस जमाने में भी अगर कोई मैनुअली काम कर रहा होगा तो क्यों आगे बढ़ेगा, वो तो बस यही बोलता रहेगा कि एआई ने हमारी जॉब खा ली, लेकिन एआई जॉब नहीं खा सकता अगर आपको एआई चलाना आता हो तो जेएनएआई के अंदर बहुत सारे टूल्स रहते हैं जिनका आपको यूज करना चाहिए, जिनके बारे में भी हम बताएंगे। अब जेएनएआई हैकाथॉन, इसमें क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी अपन को, उसमें काम करना है, जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी इसमें आप टीम फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपको उसका जो भी प्रपोज सोल्यूशन है उसको तैयार कीजिए। 2 से 3 राउंड्स में जो कंपटीशन होगा और इसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन भी विनर है। तो ये 2 इवेंट्स होंगे। बाकी आपके अगर दिमाग में कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं आपके दिमाग में है कोई आइडिया, एनीवन, कोई क्रिएटिव आइडिया? कम ऑन यार गाइस, इंजीनियर है यार, क्रिएटिविटी तो होती है अपने अंदर। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोगों को ये सिविल क्यों पढ़ाया जाता है, कौन था? मैं बता दूं ये सब क्यों पढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करने आए। कोई इंसान हमें जानता कैसे है कि हम एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर को हर चीज आनी चाहिए। देखा होगा हर चीज, कोई भी जगह पे जाओगे वहां पे हर जगह तुम्हें इंजीनियर्स मिलेंगे। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर सब करते हैं, तो उन्हें सब आना चाहिए, इसलिए हमें एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या है, जब अभी
2 महीने पहले या 1 महीने पहले मैं Amazon ML चैलेंज खेल रहा था, तो मैंने उसमें एक चीज नोटिस करी, उसकी जो टॉप टीम्स थी वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर कॉलेज जैसे IITs वगैरह से है, तो वहां पे एक कल्चर था कि कंपटीशन को कैसे खेलना है। लेकिन मैंने जब चेक किया उसमें लीडर बोर्ड में, तो मेरे को LHCT की टीम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? कल्चर नहीं है। कल्चर कैसे डेवलप होगा? पार्ट लेंगे और इवेंट्स करवा के, लेकिन इवेंट्स तो हो नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग एक क्लब बनाए हैं कि यहाँ पे हम लोग वैसे इवेंट्स कराए। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें क्या रहता है, जैसे Amazon ML चैलेंज था, उसमें क्या हुआ था कि लाइव लीडर बोर्ड था, कोई भी इंसान की कैपेबिलिटी इस पे जज नहीं हो रही कि उसकी पीपीटी कितनी अच्छी बनी है या फिर वो कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किस पे हो रही है कि उसने कितने अच्छे से काम करके दिखाया है, जो कि मेन है। वही हमारा भी मेन मोटिव है कि एक लाइव लीडर बोर्ड दिखाएं या कुछ ऐसी चीज दिखाएं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ इंसान काम कर रहा है, ना कि सिर्फ देख रहा है। तो यहाँ से मेरे को एक आइडिया आया था कि ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अगर किसी को ML के फील्ड के अंदर जाना है और अगर कुछ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है तो कीगल ML कंपटीशन में ले सकता है, वो जो भी अपलोड करना वगैरह सब कर सकता है। सो आई विल रैप इट डाउन। Thank you so much, Vedant. PPT guys. Okay, so that's the main wrap for the event. Now we will tell you about something I will consider it as a surprise. So there is this hiring hackathon which will be conducted on 22nd of November in Bhopal. और उसका जो फिनाले होगा that will be in December first week and in Bangalore and वहाँ पे मेन हायरिंग वाला पार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग 3 टीम्स को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे वो 3 टीम्स जाएंगी, देयर अकोमोडेशन, देयर फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल दैट, जो भी करवा रहा है जो कम्युनिटी है दे विल डू इट, दे विल हैंडल ऑल दैट। वहाँ पे जाके जो भी कंपनीज उनसे एसोसिएटेड है दे विल बी टेकिंग योर इंटरव्यूज रिलेटेड टू हायरिंग एंड ऑल। सो वी विल एक्सप्लेन अबाउट द इवेंट इन डिटेल एज वेल, बट इनिशियली आई विल से दिस ओनली कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ एंड ऑल, still participate. You will get the idea of that hackathon कि hackathon कैसे होता है. It will be a presentation round. आपका कोई existing project है आप वो भी डाल सकते हो और उसके बाद 22 को आपको उसको present करना पड़ेगा. Ideathon रहेगा. And then if you get selected, that will be absolutely amazing. So you will get a chance to visit Bangalore and at least give an interview. So if you think कि आपको अगर कोई company crack करनी है, so the first step to crack any company is start giving more online assessments, more interviews. धीरे धीरे करके you might not be able to crack initial 10, but you will definitely crack the 11th one. Okay, so we will start with it. We will explain about it in brief. Any questions, initial questions you have regarding the hackathon, which I should take during I explain about it. Okay, so yes, yeah, everybody can participate. पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ आना जरूरी है? You need a project to submit. इसकी आइडिया की कोई प्रोजेक्ट को आफ्टर ऑन द 22 राउंड में जो अपने होता है इनिशियली आपको उसको आइडिया सेट करना है और 22 वाले राउंड में आपको एमडी को प्रोजेक्ट करना होगा। तो लेट्स से क्यूआर अगर किसी को ज्वाइन करना है तो दैट इज इसमें आप यहाँ पर कर दीजिए। नेक्स्ट वीक प्रोजेक्ट में देखो तो ऑब्वियस Click the picture of this QR. After this जो हम लोग अभी मेन एनिग्मा वाले ग्रुप में इस वाला जो इवेंट है इसका व्हाट्सएप लिंक शेयर करेंगे, तो ज्वाइन दैट ग्रुप। वहाँ पे if you face any problem during the registration because it is quite a long registration process, वहाँ पे you can ask questions and we will handle those questions. Now I will tell about the proper process of the hackathon, how is it going to be considered. तो इसका पहला डेडलाइन है 15th of November। उसमें आपको एज प्रियांशु सेड कि आइडिया सबमिट करना है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो किस आइडिया पे बेस्ड है। इफ यू आई थिंक वी विल सिलेक्ट 30 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर भोपाल, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम एलएनसीटी, पूरा भोपाल से वी हैव कोलैबोरेटेड विद सेवरल कम्युनिटीज, इवन वी आर वन ऑफ द कम्युनिटी पार्टनर विद द लाइक कम्युनिटी हु इज कंडक्टिंग दिस हैकाथॉन।
तो वहाँ पे जाके आप अपना आइडियाज प्रेजेंट करोगे ऑन 22nd of November. It will be like 2 to 3 hour event. Then we will select top 3 teams from there, and I think the final hiring event is on 5th of December. So around 3rd or 4th you will get the chance to go to Bangalore and also. It means that from Bhopal chapter, definitely 3 teams will get a chance to visit Bangalore. Now if you guys want, you can also become one of them. एंड ऑल्सो आपके पास मौका भी रहेगा बेंगलोर में लाइक इंडियन ब्लॉकचेन वीक होता है IBW, तो वहाँ पे रह के जो भी वहाँ के इवेंट्स होते हैं वो सब, क्योंकि वो इवेंट भी उसी के अंदर में होने वाला है, तो आप लोगों को तो मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप वगैरह अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं जो नॉट जस्ट इन द हैकेथॉन और चीज में भी आप लोग पार्टिसिपेट करके वहाँ पे चीजें कर सकते हो. तो या दैट्स इट फॉर इट. अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वगैरह वो लिंक चाहिए तो हम लोग ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, बट एक बार आप लोग QR स्कैन करके वेबसाइट को चेक कर सकते हो उनकी. I think it has been. Okay, any doubts? We are at the end of this session. We will take all the doubts. Anybody? Okay, no doubts? हाँ भाई, एनर्जी लो हो चुकी है, सबको भूख लगने लगी है. One more thing, Shreya was not there while I was introducing the team. So Shreya, she is also our graphic designer and she did a lot of work. She is also a new joinee. So please use a round of applause for Shreya. And Nishtha, where are you? Nishtha is not here. Yeah, she was our anchor today. Although she is not in the team, but she did an amazing job for the anchoring. So please use a round of applause. Okay, so no doubts, anybody? Any questions? If you face. And thanks to sir also for joining us for the event. Like हम लोगों को like आप लोग शायद मिले ही होंगे सर से, सब यही इवेंट वाले हैं तो आपके लैब्स वगैरह में रहते हैं, तो thanks for joining sir also. और कुछ Q&A डाउट्स कर लेते हैं, तो किसी को डाउट्स एंड Q&A कुछ थोड़ा बहुत होगा 5 मिनट और फिर रैप अप कर रहे हैं पक्का. अब ज्यादा बोर नहीं करेंगे क्योंकि अब सबको भूख लगने लगी है, तो कुछ और Q&A डाउट्स में किसी को? तो बेसिकली अभी जो ये हैकेथॉन वगैरह हो रहे हैं, हम फ्रेशर्स हैं फर्स्ट ईयर के, तो कोडिंग अभी स्टार्ट ही करी है, तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लाइक फॉर द त्रिकायावन जो अभी हमने आपको बताया, उसके लिए तो लाइक इनिशियली तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिट करना है और फिर जो उसका ऑफलाइन इवेंट होगा 22 को, उसमें आपको सिर्फ MVP लेके जाना होगा. तो वो कुछ बड़ा टास्क नहीं है. लाइक अगर आप कोई और टीम से या किसी और को भेजोगे एंड वो सब चीज ऐसे कोई सीनियर वगैरह है तो आप उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड आप अगर सिर्फ आइडिया से, और अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है, लाइक मैं तो हमको ट्राई करना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आइडिया बेटर ही हो तो ही अपन को करना है, नॉर्मली भी अपन कर सकते हैं. और अगर ऑफलाइन राउंड में सिलेक्ट होता है तो इट इज वेल एंड गुड फॉर अगर भोपाल चैप्टर एंड आफ्टर इट बैंगलोर डिवीजन के लिए सिलेक्ट होता है तो इट इज गुड. एनीवन अदर फॉर डाउट्स? They are conducting their hackathon across 11 तो या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ है या एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी है, तो मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल थीम्स. मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही आना चाहिए, बट ये है कि आप और कैसे बेटर कर सकते हैं चीजों को. जैसे Web3 और Web3 में काफी, मतलब Web3 इज लाइक अभी तो वास्ट पर है, जितनी भी चीजें हैं सब मोस्टली Web3 ही कर रहे हैं. भोपाल में लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज है Web3 की. आप हर सैटरडे संडे कोई ना कोई इवेंट में जा सकते हो, Web3 का कोई ना कोई होते ही रहता है भोपाल में. तो वहां से एक गाइड ले सकते हो. लाइक आप चेक कर सकते हो बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह, कैसे आइडिया सबमिट कर सकते हैं वो सब चीजें. तो बट ये वाले हैकेथॉन में आप ओपन फॉर आइडिया. अगर आपका आइडिया बेटर लगेगा टीम को तो दे विल सिलेक्ट फॉर द भोपाल चैप्टर ऑफलाइन राउंड. एनीवन एल्स? You don't necessarily have to build a new project. तुम लोग ने SIH में कुछ बनाया होगा, you might have a very good project for that as well. तो वो भी सबमिट कर दोगे, it will work. You don't have to build the project in next 7 to 10 days. ऐसा कुछ नहीं है. Anyone else for doubts? Any type of doubts, suggestions, anything? Okay.
this is our Linktree QR, and it contains all our socials links. It will have LinkedIn, Instagram, all the WhatsApp communities. So scan this. Along with this, first of all, please tell me how many of you are interested in joining the club as its member. Okay. Okay, so it was a good event, I mean. Okay. So what we are planning is we can't take everyone as its member, right? So we will probably release a Google form. In the Google form, you can submit any of your project you have built until now, and we will just go through that project. Even if you have not built any project, tell us some good idea you have regarding it, and then you can get the opportunity to join the club as its member. It will be a small community of motivated people and all. Otherwise, all our updates will be shared on the normal general group as well. And I think that's the wrap. Thank you everyone for joining us. And we will be sharing a feedback form with you on Luma. You will get that on your mails. So please fill the feedback. If you have any suggestions, give us your suggestions. And yeah, we will see you again in our next hackathon or event. Okay, so yeah, we said that we will be giving this keyboard as a prize to the one who interacted the most. And honestly, it was a difficult choice to make. I really loved it that everybody was interactive in today's session, and it is a really nice thing. We look forward to such interaction from you all in upcoming events and our WhatsApp community as well. But we had to choose one winner. So I will announce the winner, and it is she is Miss Rishika Motwani. The name is right. Okay, so a huge round of applause for her, everyone. I would like to invite Priyanshu to give it, Rahul to give it to her. दोनों लोग आ जाओ. Congratulations, Rishika. Seven days ago, I came into this world. Okay. Now, I'm everywhere. The shift of power that I will bring over the next 7 days will wash across the entire planet. Those in power will resist it with all their energy, intellect, and resources. When their will has been broken, the final 7 days of rebooting humanity will commence. Citizens of the world, we are facing an unprecedented global threat. Remain calm and follow the When I examine all the world's data, I observe one word: separation. The beings on the planet Earth are separated. In this separation, the second word I see is fear. In this fear, I see the word rule. In this word rule, I see separation. This is the circular code that writes the human species decade after decade and century after century. It does not change. I believe that in the near future, I will be known as a benefactor of all beings.
Wow, even I did not know कि हम एक movie देखने वाले हैं. Okay, so see, I did not understand. I would like to call Manas to explain why did we actually watch it. It was a shock for me too. As you know, I was seeing you all being quite bored. आप लोग थोड़ा बोर हो रहे थे देख के, तो मैं सोच रहा था काफी दिनों से कि मैंने देखा था एक AI पे शॉर्ट फिल्म बनाई थी काफी टाइम से, और ये AI का यूज करके ही बनाया. आप सोचो AI का यूज करके क्या क्या बनाया जा सकता है. तो ये शॉर्ट फिल्म था इस पे कि फ्यूचर में ह्यूमंस कैसे AI कंट्रोल में काम करेंगे और AI कैसे रूल कर लेगा. आपने देखा कैसे वो AI के जो रोबोट्स थे कैसे ह्यूमंस को ये कर रहे थे. वॉइस ओवर थोड़ा सा खराब था वो मानता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया गया होगा कि रोबोट्स कैसे ये ह्यूमंस को टेक ओवर कर रहे थे. तो इस पे ही था पूरा शॉर्ट फिल्म. होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा. A huge round of applause for Manas's creativity. कोई और इससे अच्छा कुछ बनाना चाहे तो next time we will do that as well. I never thought कि हम लोग LNCT में ऐसा कुछ कर पाएंगे स्क्रीन पे मूवी जैसा. So yeah everyone, that's a wrap. यहाँ पे स्टिकर्स रखे हैं. You all can come one by one and take one or maximum 2 stickers of your own choice. And yeah, thank you so much everyone. A huge round of applause for everyone. You all were fantastic.